ایپیسوڈ کے آغاز میں گیبریل صلاح الدین ایوبی سے کہتا ہے تمہارے ساتھ ہماری لڑائی یہیں پہ ختم ہوتی ہے صلاح الدین، الوداع الوداع۔ اس کے ساتھ ہی گیبریل کے اشارے پر صلیبی سپاہی چاروں طرف سے صلاح الدین ایوبی پر تیر تان لیتے ہیں، مگر جب گیبریل چھوڑو کہتا ہے تو وہاں پہ پہنچنے والے صلاح الدین ایوبی کے ساتھی ان پر تیر برسا دیتے ہیں۔ اس زبردست حملے میں بہت سے صلیبی تیر انداز مارے جاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر گیبریل اور سریا خاتون حیران و پریشان ہو جاتے ہیں اور صلاح الدین ایوبی اس لمحے کو یاد کرتے ہیں جب آنے سے پہلے انہوں نے علی سے کہا تھا گیبریل سریا خاتون کے ذریعے ہمیں جان میں پھنسا سکتا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، پارس کو ہمارے پیچھے آنے کی خبر بھیج دینا۔ تو علی نے پوچھا تھا اگر وہ غدار یہاں پہ آ گیا تو کیا ہوگا؟ جواباً صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا ہمارے سلطانوں سے سنبھال لیں گے، انہیں بھی خبر پہنچا دو۔ اس خیال کے بعد گیبریل کہتا ہے انہوں نے احتیاطی تدابیر اختیار کر رکھی تھی۔ اس کے ساتھ ہی پارس اور اس کے ساتھ موجود سپاہی گھوڑوں سے اترتے ساتھ ہی صلیبی سپاہیوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ یہ دیکھ کر صلاح الدین ایوبی بلند آواز سے کہتے ہیں حملہ بہادرو۔ صلاح الدین ایوبی کا حکم ملتے ساتھ ہی ان کے ساتھ موجود ان کے ساتھی صلیبیوں پر چڑھ دوڑتے ہیں۔ اپنی غلطی کو سدھارنے کا موقع ملنے پر سریا خاتون بھی اس لڑائی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہیں۔ لڑتے لڑتے صلاح الدین ایوبی بیک وقت اپنے آگے اور پیچھے موجود دو صلیبی سپاہیوں کے پیٹ میں تلواریں گھوم دیتے ہیں۔ سریا خاتون کو لڑتا ہوا دیکھ کر خنجر کے نیچے موجود خلیل چلاتے ہوئے کہتا ہے محتاط رہو بہن۔ جواباً سریا خاتون صلیبی سپاہی کو موت کے گھاٹ اتارتے ہوئے کہتی ہیں خلیل ہمت رکھو، میں تمہیں ان کے ہاتھ میں نہیں چھوڑوں گی۔ لڑتے لڑتے صلاح الدین ایوبی اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں ہمیں انہیں پکڑنا ہوگا اس سے پہلے کہ غدار قیدیوں کو بچا کر لے جائے، جبکہ گیبریل بھی کہتا ہے ان میں سے کسی کو بھی یہاں سے فرار مت ہونے دینا، سب کو مار ڈالو۔ ادھر غار کے باہر زخمی سلطان نور الدین زنگی زمین پر گر جاتے ہیں۔ یہ دیکھتے ساتھ ہی ان کے وزیر مشیر اور سپاہی ان کی جانب بھاگ پڑتے ہیں، مگر بلندی پر موجود صلیبی سپاہی ان پر تیر چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر شیر کو سپاہیوں سے کہتا ہے سلطان کی حفاظت کرو۔ حکم ملنے پر سپاہی سلطان کے سامنے ڈاہل بن جاتے ہیں اور جوابی حملے میں کچھ صلیبی سپاہیوں کو بھی مار ڈالتے ہیں۔ اس ہلچل کو دیکھ کر استاد اعظم وکٹوریہ سے کہتا ہے یہ فرار ہونے کا وقت ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ دونوں بھاگ پڑتے ہیں۔ انہیں بھاگتا ہوا دیکھ کر شیر کو کہتا ہے انہیں پکڑو۔ پیچھے بھاگنے والے سلطان کے سپاہیوں کو صلیبی سپاہی تیر مار کر مار ڈالتے ہیں۔ مشن پورا کرنے کے بعد نصر الدین بھی ایک طرف دوڑ پڑتا ہے۔ صلیبی سپاہیوں کے پاس پہنچ کر وکٹوریہ استاد اعظم سے کہتی ہے ہمیں جلد از جلد اسکلان پہنچنا ہوگا۔ یہ سن کر استاد اعظم سپاہیوں سے کہتا ہے ہماری حفاظت کرو۔ اس کے ساتھ ہی وہ سپاہیوں کے حصار میں پیچھے ہٹنے لگتے ہیں۔ دونوں طرف سے زبردست تیر اندازی جاری رہتی ہے، کبھی زنگی سپاہی شہید ہوتے ہیں تو کبھی صلیبی سپاہی مارے جاتے ہیں اور تکلیف کی شدت سے سلطان بھی بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر شیر کو بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ ناظرین اس کے بعد ہم جنگل میں دیکھتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی کے جانباز اور سریا خاتون صلیبیوں پر حاوی نظر آتے ہیں۔ خلیل بھی کمانڈر اور سپاہی کو پیچھے دھکیل کر بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، مگر پھر سے دبوچ لیا جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر سریا خاتون اس کی جانب بڑھنے کی کوشش کرتی ہیں، مگر ان کے بالکل سامنے کھڑا صلیبی سپاہی ان پر تیر چھوڑ دیتا ہے، جسے صلاح الدین ایوبی بمشکل روکتے ہیں اور پھر سپاہی پارس سے کہتے ہیں پارس ہمیں فوراً قرارگاہ جانا ہوگا، ہم ڈال بنا کر پیچھے ہٹیں گے۔ اس کے ساتھ ہی وہ سب پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر لیونارڈ چلاتے ہوئے گیبریل سے کہتا ہے جناب ہمیں اپنی پوری فوج کے ساتھ ان پر حملہ آور ہونا ہوگا۔ تو گیبریل اسے روکتے ہوئے کہتا ہے رک جاؤ، استاد اعظم اور وکٹوریہ کو پہلے ہی بچا لیا ہوگا، صلاح الدین کے ان تک پہنچنے سے پہلے ہمیں انہیں بچانا ہوگا، جلدی کرو۔ اس کے ساتھ ہی وہ خلیل کو لے کر پھر سے پلٹ جاتے ہیں۔ ادھر صلیبی سپاہیوں کو تیر برساتا ہوا دیکھ کر شیرکو کہتا ہے ہمیں جلد از جلد انہیں مار کر سلطان کو یہاں سے لے جانا ہوگا۔ شیرکو کی بات سنتے ساتھ ہی اس کے سپاہی بہت جلد تمام صلیبی سپاہیوں کو مار ڈالتے ہیں۔ پھر شیرکو سپاہیوں سے کہتا ہے غدار کے پیچھے جاؤ، چلو۔ یہ سنتے ساتھ ہی سپاہیوں کا ایک گروہ غدار یعنی کہ نصر الدین کے پیچھے نکل پڑتا ہے۔ پھر شیرکو کھڑے ہو کر کہتا ہے اچھی طرح سے اوپر کا بھی جائزہ لو، ہمارے سلطان کی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی، ان کا خون بہت زیادہ بہہ چکا ہے، ہمیں انہیں جلد از جلد دمشق لے کر جانا ہوگا، چلو سپاہیوں۔ اس کے ساتھ ہی سپاہی سلطان کو اٹھا کر وہاں سے لے جاتے ہیں اور وزیر شیرکو سے کہتا ہے توران شاہ اسے غدار ہونے کے شک میں یہاں قید کیا گیا تھا، کیا وہی ہے جس نے سلطان پر وار کیا؟ اس کے ساتھ ہی وہ دونوں تلواریں بے نیام کرتے ہوئے غار کے اندر چلے جاتے ہیں، مگر وہاں انہیں توران شاہ نہیں ملتا۔ توران شاہ کے نہ ہونے پر وزیر کہتا ہے وہ بھاگ نکلا، خواہ وہ غدار نہ بھی ہو، اس نے جو کیا سارا الزام اسی پر آئے گا۔ یہ سن کر شیرکو کو بہت دکھ ہوتا ہے کیونکہ وہ بھی جانتا ہے کہ توران شاہ غلطی پر غلطی کرتا جا رہا ہے۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں زنگی سپاہی غدار کی تلاش میں ہوتے ہیں، جبکہ ان کے قریب ہی میں توران شاہ جاڑیوں کے پیچھے چھپا ہوتا ہے، مگر سپاہی دوسری طرف نکل جاتے ہیں۔ انہیں جاتا ہوا دیکھ کر توران شاہ کہتا ہے میں تم کمینوں کے سامنے کبھی نہیں جھکوں گا۔ ادھر فاطمہ خاتون بہرا سے کہہ رہی ہیں ملک صلاح الدین میرا بیٹا ہے، آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے؟ تو بہرا کہتی ہے جس دن آپ کا بیٹا فوت ہوا سلطان نور الدین کا بیٹا صلاح الدین پیدا ہوا، اگر آپ صرف اس کی رضائی ماں ہیں تو آپ نے اس سچائی کو برسوں کیوں چھپائے رکھا؟ اس کے پیچھے اور کون سے راز چھپے ہیں؟ تو فاطمہ خاتون کہتی ہیں اسی دن میں نے اپنا بچہ کھو دیا تھا، اس لیے میں نے ملک صلاح الدین کو رضائی ماں بن کر دودھ پلایا، آپ جو بھی ڈھونڈ رہی ہیں یہ واحد سچائی ہے جس تک آپ پہنچ پائیں گی۔ تو بہرا کہتی ہے میں جیسے جیسے تلاش کرتی جا رہی ہوں مزید سچائی سامنے آتی جا رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اور بھی بہت سے سچ ہے جن تک ہم پہنچ سکتے ہیں اور میں ایک ایک کر کے ان تک پہنچوں گی۔ ادھر سریا خاتون اور صلاح الدین ایوبی سپاہیوں کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں اور دوسری طرف ڈرا سہما ہوا نصر الدین ادھر ادھر دیکھتے ہوئے مسلسل بھاگ رہا ہوتا ہے کہ اس لیے میں گیبریل وہاں پہ پہنچ کر اس کے گلے پر تلوار تان لیتا ہے اور پوچھتا ہے وکٹوریہ اور استاد اعظم کہاں ہیں؟ تو نصر الدین کہتا ہے وہ بھاگ گئے۔ گیبریل غصے سے کہتا ہے تمہارا کیا مطلب کہ وہ بھاگ گئے؟ تم انہیں لینے گئے تھے؟ تو نصر الدین کہتا ہے عین موقع پر سلطان نور الدین زنگی آ گئے، اس نے مجھے پکڑ لیا۔ یہ سن کر گیبریل حیرانگی سے پوچھتا ہے پھر تم کیسے بچ کر نکل آئے؟ جواباً نصر الدین کہتا ہے مجھے اسے خنجر مارنا پڑا۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ غصے میں گیبریل کی تلوار پیچھے کر دیتا ہے۔ تو گیبریل کہتا ہے تم انہیں بچا سکو اس لیے میں صلاح الدین کو وہاں سے پیچھے لے گیا، اگر یہ صلیبیوں کے لیے نہیں کیا تو اپنے بھائی پر وار کرنا بھی تمہیں نہیں بچا سکتا، تم مجھ سے اپنا وعدہ کیسے نہیں نبھا پائی؟ اس پر نصر الدین کہتا ہے تمہاری وجہ سے مجھے سلطان نور الدین کو خنجر مارنا پڑا، شاید اس سے میرا بھائی مر جائے۔ تو گیبریل کہتا ہے تم نے وہی کیا جو ضروری تھا، کیا یہ ٹھیک نہیں کہ اگر تمہارا بھائی مر گیا تو تم میری بدولت تخت پر بیٹھ سکتے ہو؟ لیکن اگر صلاح الدین نے استاد اعظم اور وکٹوریہ کو دوبارہ گرفتار کر لیا تو کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا؟ پھر اس کا چہرہ عیاں کرتے ہوئے کہتا ہے پھر میں سب کو بتا دوں گا کہ تم اور تمہارا بیٹا غدار ہے، مجھے فوری طور پر وکٹوریہ اور استاد اعظم کو تلاش کرنا ہوگا اور تم صلاح الدین کو ان تک پہنچنے سے روکنے کے لیے جو کچھ کر سکتے ہو کرو۔ اس کے ساتھ ہی نصر الدین اپنا چہرہ ڈھانپ کر ایک جانب بڑھ جاتا ہے۔ نصر الدین کو جاتا ہوا دیکھ کر توران شاہ کہتا ہے غدار اب میں نے تمہیں پکڑ لیا ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی توران شاہ اس کے پیچھے بھاگ پڑتا ہے، اس لیے میں کچھ زنگی سپاہی وہاں
पहुंचते हैं और कहते हैं गद्दार हथियार डाल दो। जवाबन तुरान शाह पलटते हुए कहता है गद्दार उस तरफ भागा है। ये सुनकर एक सिपाही कहता है तुम हमें बेवकूफ नहीं बना सकते तुरान शाह, गद्दार तुम ही हो और अब तुम इसकी कीमत अदा करोगे, कोई हरकत मत करना। जवाबन तुरान शाह चिल्लाते हुए कहता है मैं गद्दार नहीं हूँ, गद्दार उस तरफ गया है, तुम गलत आदमी के ताकुब में हो। ये कहते साथ ही तुरान शाह फिर से भाग पड़ता है। उसे भागता देखकर जंगी सिपाही उस पर तीर बरसाते हैं, मगर तुरान शाह दरख्तों की वजह से बचता हुआ निकल जाता है और सिपाही उसका ताकुब करते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी सुरैया खातून और सिपाहियों के साथ जंगल से आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए हमें शेरको सिपाहियों के साथ वहाँ पहुंचता है। शेरको को देखते साथ ही सलाहुद्दीन अय्यूबी हैरानगी से कहते हैं अमीर शेरको आप यहाँ? जवाबन शेरको कहता है उस्ताद आजम और विक्टोरिया को हमारे दरमियान मौजूद गद्दार ने बचा लिया। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी पूछते हैं क्या आप उस गद्दार को पकड़ नहीं सके? जवाबन शेरको कहते हैं हम उसे पकड़ने ही वाले थे कि उस गद्दार ने सुल्तान नूरुद्दीन पर खंजर से वार कर दिया, जख्म गहरा है, उन्हें महल में ले जाया गया है। यह सुनते साथ ही सलाहुद्दीन अय्यूबी बहुत ज्यादा गमगीन हो जाते हैं और दरख्त के सहारे खड़े हो जाते हैं। उन्हें इस तरह से गमगीन देखकर शेरकुन के पास आते हैं और कहते हैं मेरे मलिक आप मेरे सुल्तान की अमानत हैं, अब हमें आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है, आप साबित कदम रहें। मगर सलाहुद्दीन अय्यूबी मुसलसल बाबा बाबा कहते ही चले जाते हैं। तो शेरको कहते हैं फिक्र ना करें, हमारे सुल्तान हकीमों के पास अमानत। मलिक सलाहुद्दीन होश में आए, रियासत को आपकी जरूरत है। रियासत का नाम सुनते साथ ही सलाहुद्दीन अय्यूबी एकदम से कहते हैं हमारे सुल्तान जब इस हालत में है रियासत का निजाम बिगड़ सकता है, हमें दमिश्क पहुंचना होगा। फिर शेरको कहते हैं तुरान शाह भी जिंदान से फरार हो गया, अब सारा इल्जाम उसी पर आएगा, मुझे उसे ढूंढना होगा। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं नहीं हमारे पास वक्त नहीं है, आप कैदियों के पीछे जाएं और मैं गैब्रियल के पीछे जाऊंगा और उससे उस गद्दार का नाम पूछूंगा जिसने मेरे बाबा पर वार किया। इसके साथ ही शेरको अपने साथ सलाहुद्दीन अय्यूबी के चंद सिपाही लेकर वहां से रवाना हो जाते हैं। उनके जाने के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी सुरैया खातून से कहते हैं क्या तुमने देखा कि तुम्हारे किए हमें क्या कीमत चुकानी पड़ी है? अगर बात मेरे नुकसान की होती तो मैं जरूर बर्दाश्त कर लेता, लेकिन तुम्हारी धोखाधड़ी ने मेरे बाबा की जान को खतरे में डाल दिया है। तो सुरैया खातून कहती है जिस तरह आप अपने बाबा के लिए गमजदा हैं उसी तरह मैं भी अपने भाई के लिए गमजदा हूँ और उसे बचाने के लिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। यह सुनकर सलाहुद्दीन अय्यूबी शदीद गुस्से से कहते हैं मैंने तुम्हारे भाई और तुम्हारे वतन के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी, लेकिन तुमने मेरी ही जान लेने की कोशिश की। तुम और वो गद्दार जिसने मेरे बाबा की जान लेने की कोशिश की अब मेरी नजरों में बराबर है। ये कहते साथ ही सलाहुद्दीन अय्यूबी सिपाहियों के साथ वहाँ से चले जाते हैं और सुरैया खातून बहुत ज्यादा शर्मिंदा होती है। उधर नसरुद्दीन महल में पहुंचकर बेटे से पूछता है क्या सुल्तान नूरुद्दीन आए थे? तो इज्जतुद्दीन कहता है वो तो नहीं आए, लेकिन आप इस तरह से क्यों पूछ रहे हैं? आपने कहा था कि आप गैब्रियल के मसले को संभाल लेंगे, क्या आपने उस मसले को संभाल लिया? क्या इसलिए आपने जल्दी में चचा के बारे में पूछा? तो नसरुद्दीन उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहता है ये महल में करने वाली बातें नहीं है, एहतियात करो, कोई भी बात सुनो या कुछ देखो तो मुझे आकर बताओ, समझ गए? उधर अमीर अय्यूब और बाकी कुछ लोग मस्जिद में बैठे होते हैं और एक शख्स अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान कर रहा होता है मुझे अपने इश्क की आग में जला डाल, सिर्फ एक ही सूरत में मेरे मौला के बदले में तो मिल जाए, चाहे वो कालीन की तरह मेरे चेहरे को रौंद डालें, सिर्फ एक ही सूरत में मेरे मौला के अगर बदले में तो मिल जाए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह मुझे अंगारों में जला डाल, मुझे मूसा अलैहिस्सलाम की तरह गारे तौर पर अपनी रहमत की झलक दिखाकर बेहोश कर दे, चाहे मुझे ईसा अलैहिस्सलाम की तरह दर्द वाली जिंदगी दे, चाहे मुझे ईसा अलैहिस्सलाम की तरह दर्द वाली जिंदगी दे, सिर्फ एक ही सूरत में मेरे मौला के अगर बदले में तो मिल जाए। हम्द सुनते हुए सब लोग बहुत ज्यादा महसूस होते हैं और सबके चेहरे पर इत्मीनान छाया होता है। हम्द के इख्तिताम पर एक शख्स कहता है हम काफी दिनों से हज पर जाने के मुंतजर हैं, हमारे खानदान वाले इस राय में हमारे मुंतजर हैं, हमें सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की तरफ से कब खबर मिलेगी? जवाबन अमीर अय्यूब कहते हैं सुल्तान नूरुद्दीन जंगी हज के रास्ते को महफूज करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सब्र रखें, हमें जल्द उनकी तरफ से खबर मिल जाएगी। इसलिए हमें एक सिपाही वहाँ पे आकर कहता है इज्जत माब अमीर। उसे परेशान देखकर सब लोग एकदम से खड़े हो जाते हैं और वो सिपाही कहता है सुल्तान नूरुद्दीन। ये सुनकर अय्यूब साहब एकदम से पूछते हैं बताओ सिपाही क्या हुआ? जवाबन सिपाही कहता है वो जख्मी हो गए हैं। यह सुनकर अमीर अय्यूब के कदम वहीं रुक जाते हैं। दूसरी तरफ से सलाहुद्दीन अय्यूबी दमिश्क की तरफ आ रहे हैं और दमिश्क में नसरुद्दीन बहुत ज्यादा परेशान दिखाई देता है और सुल्तान की बात को याद करता है तुम अपनी गद्दारी को किसी नकाब के अंदर नहीं छुपा सकते, तुम्हारी खयानत आश्कार हो चुकी है। इन ख्यालात के साथ वो उस सारे वाक़े को याद करता है और उसकी घबराहट मजीद बढ़ जाती है। फिर गैब्रियल की बातों को याद करता है अगर सलाहुद्दीन ने विक्टोरिया और उस्ताद आज़म को पकड़ लिया तो मैं तुम्हारी और तुम्हारे बेटे की गद्दारी को जाहिर कर दूंगा। इसलिए हमें बहरा खुशी खुशी वहाँ आती है और कहती है सुल्तान नूरुद्दीन को खंजर लगा है। महल के बाहर अफरा तफरी पड़ी होती है और सिपाही सुल्तान को लेकर तेजी से अंदर की जानिब आ रहे होते हैं। अमीर अय्यूब कहते हैं शिफा खाने में जरूरी इंतजाम करो, जल्दी करो। इसी दौरान वहाँ पे आने वाला नसरुद्दीन कहता है हमारे सुल्तान को क्या हुआ है, ये किसने किया है? तो वजीर आगे बढ़ते हुए कहता है उसका चेहरा ढका हुआ था, हम उसे नहीं देख सके, जख्म गहरा है हमारे सुल्तान का, आप फौरी इंतजामात का कहें। इसके साथ वो सब आगे बढ़ जाते हैं और नसरुद्दीन बैरा से कहता है वो शदीद जख्मी है। जवाबन बैरा कहती है हालात संगीन है, तख्त को खाली नहीं छोड़ना चाहिए। उधर सिपाही सुल्तान को ले जा रहे होते हैं कि मलका सुल्तान को देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और कहती है नूरुद्दीन को क्या हुआ है, ये किसने किया है, क्या हुआ है, कुछ तो बताएं मुझे। मगर अमीर अय्यूब उनसे दरख्वास्त करते हुए कहते हैं वक्त बहुत कम है, हमें इन्हें कमरे तक पहुंचाना है, जख्म गहरे हैं, जल्दी करो सिपाहियों जल्दी करो। ये कहते साथ ही वो सुल्तान को लेकर आगे बढ़ जाते हैं और सुल्ताना कहती है तबीब को बुलाओ जल्दी करो, जितने भी हुनरमंद तबीब हैं सबको महल में बुलाओ। अगले मंजर में तबीब सुल्तान का इलाज कर रहे हैं। गद्दार नसरुद्दीन भी उनके पास खड़ा होता है। जख्म देखते हुए एक तबीब कहता है खंजर जिगर के नीचे लगा है, अगर उसने सिर्फ ऊपर नुकसान पहुंचाया होता तो शायद बचने में आसानी होती, इस खून को जाया होने से हम रोक नहीं सकते, मरहम लगाना बहुत मुश्किल है लेकिन हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। तबीब जिसको सुल्तान का हमदर्द समझते हुए ये सब कुछ बता रहा होता है वो बदबख्त और जालिम शख्स यानी कि नसरुद्दीन कहता है तो क्या ये मर सकता है? जवाब में तबीब कहता है हमें हर इम्कान के लिए तैयार रहना चाहिए। जबकि कमरे के बाहर सुल्तान के मशीर और वजीर बहुत ज्यादा बेचैन होते हैं, इसलिए हमें नसरुद्दीन वहाँ आता है और कहता है तबीब का कहना है कि किसी भी सूरत हाल के लिए तैयार रहें। यह सुनकर उसका बेटा इज्जतुद्दीन पूछता है अगर हमारे सुल्तान मर गए तो क्या होगा? इज्जतुद्दीन के इस तरह बेहुदा सवाल पूछने पर सुल्तान के हामियों को बहुत गुस्सा आता है, जबकि अमीर रेहानी कहता है क्या होगा, रियासत के बका को यकीनी बनाना हमारा फर्ज है, इसलिए जरूरी इंतजाम शुरू कर देने चाहिए। तो नसरुद्दीन पूछता है जब ये सब हो रहा था तो सलाहुद्दीन कहाँ थे? जवाबन वजीर कहते हैं हम जब वहाँ पहुंचे तो वो वहाँ नहीं था। इस पर नसरुद्दीन कहता है
वो कैदियों को लेकर गया था लेकिन खुद वहाँ नहीं था। उसकी नाअहली की वजह से सुल्तान इस साल में है, उसकी गफलत बरतने की वजह से वो इसकी कीमत अदा करेगा। ये सुनकर एक अमीर कहता है मलिक सलाहुद्दीन ने जिस गद्दार को छुपाया था उसी ने सुल्तान पर वार किया है। तो नसरुद्दीन एकदम से पूछता है कौन से गद्दार ने? तो वजीर अहमद कहते हैं हम जब तुरान शाह को लेने कारगाह पहुंचे तो एक शख्स सुल्तान के सामने नमदार हुआ। वो कैदियों को अगवा करके ले जा रहा था। हमारे सुल्तान ने उसे कहा कि तुम्हारा चेहरा आज आश्कार हो जाएगा। उसने खंजर से वार कर दिया। तो नसरुद्दीन एकदम से कहता है अच्छा वो गद्दार जिसने सुल्तान पर वार किया है वो तुरान शाह है। जवाबन अमीर अय्यूब कहते हैं मेरा बेटा उस जगह खंजर नहीं उठा सकता जहाँ से उसने रिस्क खाया हो। तो नसरुद्दीन कहता है वो गद्दार नहीं तो फिर वो कहाँ है? जवाबन वजीर अहमद कहते हैं वो भी फरार हो गया है। यह सुनकर अमीर अय्यूब परेशान होते हुए कहते हैं कैसे वहाँ से भाग गया? इसके साथ ही नसरुद्दीन उस लम्हे को याद करता है जब वो विक्टोरिया और उस्ताद आजम को लेने गया था और आगे बढ़ते बढ़ते उसने तुरान शाह का भी दरवाजा खोल दिया था। दरवाजा खुलने की आवाज सुनते साथ ही तुरान शाह उठकर कमरे से बाहर चला गया था। इस ख्याल के बाद नसरुद्दीन कहता है जाहिर है कि वो गद्दार है, उसने कैदियों को अगवा किया और सुल्तान पर हमला किया। मैं फौरन तुरान शाह को ढूंढ कर लाऊंगा। तो अमीर अय्यूब कहते हैं मुकदमे के बगैर सजा बेबुनियाद है, मैं अपने बेटे को बहतान का शिकार नहीं होने दूंगा। इस पर नसरुद्दीन कहता है ये बहतान नहीं हकीकत है, मेरे भाई पर वार किया गया है, जंगी का खून बहाया गया है। सबको मालूम होना चाहिए कि मैदान अभी खाली नहीं हुआ, मैं अभी मौजूद हूँ, मैं एक एक करके नाअहलों और गद्दारों का हिसाब लूंगा। उधर गैब्रियल सिपाहियों के साथ उस्ताद आजम और विक्टोरिया को तलाश कर रहा है और कहता है विक्टोरिया और उस्ताद आजम रिहा हो चुके हैं, हर जगह अच्छी तरह तलाश करो। उसका हुक्म मिलते साथ ही सिपाही फैल जाते हैं। इसलिए में एक तीर आकर गैब्रियल के पीछे खड़े सिपाही की पीठ से आर पार हो जाता है। तीर मारने वाला तुरान शाह होता है जो गैब्रियल से कहता है तुम मेरी गिरफ्त से नहीं बच सकते गैब्रियल। जवाबन गैब्रियल कहता है तुरान शाह लानत हो तुम पर। जवाबन तुरान शाह कहता है तुम्हारी वजह से मुझ पर गद्दारी का इल्जाम लगा है, तुम मुझे उस गद्दार का नाम बताओगे जिसके साथ तुम ताउन कर रहे हो? ये कहते साथ ही तुरान शाह तलवार बेनियाम कर लेता है और कहता है वरना मैं तुम सबको एक एक करके मार दूंगा। गैब्रियल कहता है मेरे पास अगर वक्त होता तो मैं अपने हाथों से तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देता, मगर मेरे पास अभी वक्त कम है, सिपाहियों मार डालो इसे। ये सुनकर सिपाही तीर मारने लगते हैं मगर इसी दौरान वो खुद ही तीरों का निशाना बन जाते हैं। तीर मारने वाले जंगी सिपाही होते हैं जो तुरान शाह के ताकुब में हैं। उन्हें देखकर तुरान शाह गैब्रियल से कहता है तुम्हारी मौत मेरे हाथों होगी गैब्रियल। ये कहते साथ ही वो फिर से भाग पड़ता है। कुछ देर तक दोनों तरफ से तीरों का मुकाबला होता रहता है मगर जंगियों के तमाम सिपाही मारे जाते हैं और गैब्रियल फिर से शहजादी विक्टोरिया और उस्ताद आजम की तलाश में निकल बहरा खवातीन से कह रही है सुल्तान और उद्दीन की मौत की खबर किसी भी लम्हे आ सकती है, महल में जरूरी तैयारियां शुरू कर दें। यह सुनकर वहाँ पहुंचने वाली मलका कहती है क्या सुल्तान के बचने का कोई इम्कान नहीं है? जवाबन बहरा कहती है ये तबीबों ने बताया है सुल्तान का जख्म जानलेवा है, शायद वो उन्हें जिंदा ना रहने दे। बहरा की बात सुनते साथ ही मलका गुस्से में उसे पकड़ते हुए कहती है अगर तुमने एक लफ्ज भी मजीद कहा तो मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगी। वो मर जाए तो ये तुम्हारे लिए खुशी की बात होगी। तुम यहाँ गिद्ध की तरह इंतजार कर रही हो लेकिन वो सेहतियाब होकर निकलेंगे, तुम्हारे अज़ाइम जो भी हों कभी पूरे नहीं होंगे। तो बहरा कहती है मलका खातून हमारी कोई ख्वाहिश नहीं है, मैं ये सिर्फ आपके लिए कह रही हूँ। सुल्तान की हालत संगीन है, आप तमाम इम्कानात पर गौर करें, आगे क्या होता है उसके लिए खुद को तैयार करें। ये कहते साथ ही बहरा चली जाती है। उधर सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे ही महल के अंदर दाखिल होते हैं तो अमीर अय्यूब उनसे कहते हैं मलिक हजरत आपको सुल्तान नूरुद्दीन पर हमले का जिम्मेदार ठहराया जाता है। मलिक नसरुद्दीन ने बागडोर संभाल ली है, वो आप पर भी कोई मुकदमा चलाएगा। वो तुरान शाह को हर जगह तलाश कर रहा है, उसका कहना है कि वही गद्दार है और उसी ने सुल्तान पर हमला किया है। जवाबन सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं मैं ये सब संभाल लूंगा, बताए मेरे बाबा कैसे हैं? अमीर अय्यूब के जवाब न देने पर सलाहुद्दीन अय्यूबी महल की जानिब चले जाते हैं। महल के अंदर इज्जतुद्दीन नसरुद्दीन से कहता है आपने कहा था कि महल के मामलात का ख्याल रखेंगे, वो उस वक्त आपके साथ था जिसने कैदियों को अगवा किया और मेरे चचा पर वार किया। तो बाहर हंगामा राई की वजह ये थी। आपने अच्छा किया बाबा, जब आप चचा की तरह बनोगे और तख्त संभालोगे। उसके बार बार बोलने पर नसरुद्दीन उसे दीवार के साथ लगा लेता है और कहता है चुप करो मैंने कुछ नहीं किया, ये बात याद रखो। फिर उसे छोड़ते हुए कहता है सबसे पहले गैब्रियल के लिए विक्टोरिया और उस्ताद आजम को तलाश करना होगा, वरना वो हमारे बारे में सब कुछ बता देगा, हम बर्बाद हो जाएंगे। दीवान में पहले ही गद्दारी का मामला उबल रहा है, अब हम उससे फायदा उठाएंगे। हम इस गद्दारी का सारा इल्जाम तुरान शाह पर लगाएंगे और उसी से हिसाब लेंगे और इस तरह ये मामला हमेशा हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। ये सुनकर इज्जतुद्दीन पूछता है सलाहुद्दीन के बारे में क्या ख्याल है? वो कैदियों के पीछे जाएगा, हमने जो कुछ छोड़ा है सब कुछ जाहिर हो जाएगा, हम उसे कैसे रोकेंगे? जवाबन नसरुद्दीन कहता है तुम उसे मुझ पर छोड़ दो। ये कहते साथ ही नसरुद्दीन आगे बढ़ जाता है। उधर सलाहुद्दीन अय्यूबी तेजी से सुल्तान के कमरे के बाहर पहुंचते हैं जहाँ पे मलका उनसे कहती है तुमने जो किया है उसे अच्छी तरह से देखो सलाहुद्दीन, अस्कलान कैदियों और गद्दारान सबको ऐसे ही छोड़ दिया, तुम्हारी गलतियों ने हम सबको आग में झोंक दिया। अगर हमारा सुल्तान मर गया तो उसकी जानशीनी के मुंतजर गिद्ध हम सबको खा जाएंगे, इस सब का अगर कोई जिम्मेदार है तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम हो। मगर सलाहुद्दीन अय्यूबी को जवाब देने के बजाय कमरे में चले जाते हैं। उधर जंगल में उस्ताद आजम विक्टोरिया के साथ भाग रहा है और कहता है हम अगर सलाहुद्दीन की कैद में कुछ और अरसा रुकते तो उसे वो सब कुछ मिल जाता जो वो चाहता था। खुशकिस्मती से हम बच गए हैं, मगर इसी लम्हे एक तीर आकर उसके कंधे के करीब बेवस्त हो जाता है। तीर मारने वाले कुछ जंगी सिपाही होते हैं जो अगले ही पल उन्हें घेर लेते हैं। उन्हें देखकर उस्ताद आजम तीर तोड़ते हुए कहता है शहजादी तुम भागो। तो जंगी सिपाही कहता है हथियार डाल दो, भागने का कोई रास्ता नहीं बचा। जवाबन विक्टोरिया कहती है ये मौका एक बार सलाहुद्दीन को मिला था, दोबारा कभी नहीं। ये कहते साथ ही वो दोनों उन सिपाहियों पर टूट पड़ते हैं और पलक चपकते ही उन्हें शहीद कर देते हैं। लड़ाई के इख्तिताम पर उस्ताद आजम घुटनों के बल बैठ जाता है तो विक्टोरिया उसे सहारा देते हुए आगे ले जाती है। उधर शेरको और उसके सिपाही मुसलसल कैदियों की तलाश में होते हैं और शेरको कहता है हमें उन्हें जल्द अज जल्द पकड़ना चाहिए, इससे पहले कि वो अस्कलान पहुंच जाए। इसी लम्हे शेरको के पीछे से आने वाला सुलेबी सिपाही तीर शेरको पर तान लेता है और शेरको अपने सिपाहियों से कहता है हर तरफ तलाश करो। ये सुनते साथ ही सिपाही इधर उधर फैल जाते हैं जबकि सुलेबी तीरंदाज बिल्कुल निशाना लेकर खड़ा होता है, मगर सुलेबी सिपाही की हल्की सी आहट महसूस होते साथ ही शेरको अपना खंजर उसकी जानिब फेंक देता है जिससे वो वहीं पे हलाक हो जाता है। शेरको कहता है जाहिर है गैब्रियल उनके करीब से करीब तर होता जा रहा है, चलो सिपाहियों जल्दी करो। इसके साथ ही वो सब एक बार फिर आगे बढ़ जाते हैं। इधर जंगी महल में बहरा नसरुद्दीन से कह रही है तबीब का कहना है कि नूरुद्दीन का उठना मुश्किल है, हो सकता है कि किस्मत का सूरज आपके लिए चमके। खानदान का बड़ा होने के नाते अगर आप अपनी ताकत अभी नहीं तो फिर कब दिखाएंगे? अगर आप कमान को हाथ में नहीं लेते तो सलाहुद्दीन लेगा, फिर एक एक करके वो रस्सियां हमारी गर्दनों में होंगी। नसरुद्दीन कहता है मैं जानता हूँ कि उन्हीं रस्सियों से उसके
हाथ और पाँव कैसे बांधने हैं। इसलिए हमें अमीर रेहानी आकर कहता है मलिक सलाहुद्दीन बहल आए हैं। यह सुनकर नसरुद्दीन सोचने लग जाता है। दूसरी तरफ सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने बाबा के पास मौजूद होते हैं और उनका हाथ थामते हुए कहते हैं, मेरे रास्ते का हम सफर, मेरे मुश्किल दिनों का दोस्त, आपने मुझे गिरना और हार मानना नहीं सिखाया। क्या एक छोटा सा जख्म आपको गिरा सकता है? हमारे कुछ ख्वाब हैं जिन्हें हमने आपके साथ पूरा करना है। आपने अपना मिंबर मस्जिद अक्सा में रखना है और मैं अपने हाथ में फतह का झंडा लेकर कुछ में दाखिल होऊंगा। आपकी इस हालत में पढ़ने में मेरी भी गलती थी जानता हूँ, लेकिन मैं उन तमाम वादों को पूरा करूंगा जो मैंने आपसे किए थे। ये कहते हुए सलाहुद्दीन अय्यूबी की आंखों से आंसू बहने शुरू हो जाते हैं और वो मजीद कहते हैं, मैं उस गद्दार को ढूंढ लूंगा जिसने आपके साथ ये किया बाबा। इसलिए लम्हे उमर मल्लाह वहाँ आते हैं। उन्हें देखकर सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, तबीब कहते हैं कि इनकी हालत तशवीशनाक है। इस पर उमर मल्लाह कहते हैं, अल्लाह हर चीज पर कादिर है, हमारा काम अपना फर्ज पूरा करना है और आपका फर्ज है कि उसके बताए हुए रास्ते पर चलें। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी सुल्तान की तरफ देखते हुए कहते हैं, मेरा दिल दिमाग सब कुछ यहाँ है, इनके बगैर मैं कुछ नहीं हूँ। जवाबन उमर मल्लाह कहते हैं, अगर ये बोल सकते तो ये चाहते कि आप अपने मकसद की खातिर अपना फर्ज पूरा करें। एक बेटे के तौर पर आप जो बेहतरीन काम कर सकते हैं वो ये है कि आप अपना फर्ज जारी रखें। उमर मल्लाह की बातें सुनने के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी का हौसला बढ़ जाता है। उधर शहजादी विक्टोरिया उस्ताद आजम को एक जगह बिठा देती है और कहती है, आप यहाँ मेरा इंतजार करें, मैं जख्म के लिए कुछ जड़ी बूटियां ढूंढ कर लाती हूँ। ये कहते साथ ही वो चली जाती है। इसलिए हमें कुछ जंगी सिपाही वहाँ पहुंचकर उस्ताद आजम के गर्दन पर तलवारें रख लेते हैं और उस्ताद आजम के खड़े होने पर एक सिपाही कहता है, तुम्हारे पास भागने की कोई जगह नहीं बची। उधर सलाहुद्दीन अय्यूबी कमरे से बाहर अपने साथियों के पास आते हैं और उनसे पूछते हैं, क्या सूरत हाल है? जवाबन अहमद कहता है, लोग आहिस्ता आहिस्ता पुरस्कून होते जा रहे हैं, रियासत के अंदर कोई इंतशार नहीं है। इस पर सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, अमीर शेर को विक्टोरिया और उस्ताद आजम का सुराग लगा रहा है, हम भी उनके पीछे चलेंगे। इसके साथ ही वो जाने लगते हैं तो अमीर रेहानी वहाँ पे आकर कहता है, शहजादे मलिक नसरुद्दीन ने आपको बुलाया है। उधर जंगल में सिपाही उस्ताद आजम से पूछ रहा है, विक्टोरिया कहाँ है? तो पीछे खड़ी विक्टोरिया कहती है, मैं यहाँ हूँ। यह सुनकर तीन जंगी सिपाही भागकर उस पर हमला कर देते हैं, मगर शहजादी विक्टोरिया बारी बारी उन्हें मारती ही चली जाती है। आखिरी सिपाही उसकी तलवार गिराने में कामयाब हो जाता है और तलवार का रुख उसकी तरफ कर लेता है। यह देखकर उस्ताद आजम अपने सामने मौजूद सिपाही को धकेलकर खंजर विक्टोरिया के सामने खड़े सिपाही की गर्दन में दे मारता है। फिर शहजादी विक्टोरिया उस्ताद आजम का जख्म बांधने लग जाती है और वो दोनों फिर से आगे बढ़ जाते हैं। उधर जंगी महल में सलाहुद्दीन अय्यूबी नसरुद्दीन के पास आते हैं और कहते हैं, जो कुछ कहना चाहते हैं जल्दी से कह दें चचा, मैं कैदियों के पीछे जाना चाहता हूँ। तो नसरुद्दीन कहता है, क्या तुम उन कैदियों के बारे में बात कर रहे हो जो तुम्हारी ही गफलत की वजह से फरार हो गए? तुमने कहा था कि वो वहाँ से नहीं निकल सकेंगे, तुम्हारे बाबा तुम्हारी वजह से जख्मी हुए और तुमने अब भी कैदियों का पीछा करना है। यह सुनकर सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, अगर मैं कोई गलती करता हूँ तो मैं उसकी तलाफी करना जानता हूँ, जब मैं उन्हें पकड़ूंगा तो तलाफी हो जाएगी। इस पर नसरुद्दीन कहता है, तुम अब कुछ नहीं करोगे, अब तुम्हारी गलतियों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। विक्टोरिया और उस्ताद आजम के पीछे तुम नहीं जाओगे, अगर इसके बारे में कुछ करना है तो वो मैं खुद करूंगा। यह सुनकर सलाहुद्दीन अय्यूबी गुस्से से कहते हैं, अगर गैब्रियल ने उन्हें ढूंढ लिया तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, लेकिन अगर हमने उन्हें पकड़ लिया तो अस्कलान, हज का रास्ता और मेरे वालिद को मारने वाले गद्दार को भी मालूम कर सकते हैं। इस पर नसरुद्दीन कहता है, गद्दार तुरान शाह है, सिपाही उसके पीछे हैं। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, तुरान शाह गद्दार नहीं है, मैं सारी हकीकत जाहिर कर दूंगा। उधर गैब्रियल और उसके सिपाही उस्ताद आजम और विक्टोरिया की तलाश में होते हैं। इसलिए मैं शेर को और सिपाहियों को घोड़ों पर जाता हुआ देखकर कमांडर कहता है, जनाब ये शेर को है। उसे देखकर गैब्रियल कहता है, बज़ाहिर ये विक्टोरिया और उस्ताद आजम का पीछा कर रहा है, सलाहुद्दीन ने इसे भेजा है, हम शेर को मार डालेंगे, इससे पहले कि कैदी इनके हाथ लग जाए, घोड़े ले आओ जल्दी करो। इससे पहले कि वो आगे बढ़ते बादशाह बालदन सिपाहियों के साथ वहाँ पहुंचता है और आगे बढ़ते हुए कहता है, तुम क्या समझते हो कि तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें मोहलत दी थी लेकिन तुमने कुछ भी नहीं किया गैब्रियल। विक्टोरिया और उस्ताद आजम कहाँ है? जवाबन गैब्रियल कहता है, सलाहुद्दीन पहले ही शेर को बेच चुका है और आप यहाँ मेरा रास्ता रोककर खड़े हैं, आप मेरे रास्ते से हट जाएं वरना विक्टोरिया और उस्ताद आजम हाथ से निकल जाएंगे। ये सुनकर बादशाह बालदन कहता है, बस बहुत हुआ, तुमने अपना मौका खो दिया, अब से जो भी करना होगा मैं खुद करूंगा, फिर मैं आकर तुम्हारे पास जो कुछ है ले जाऊंगा। ये सुनते साथ ही दोनों तरफ के सिपाही तलवारें बेनियाम कर लेते हैं। इधर नसरुद्दीन सलाहुद्दीन अय्यूबी से पूछता है, क्या अब आप खुद ही फैसले कर रहे हैं? सबूत वाज़ेह है, गद्दार तुरान शाह है। बस तुमने लालच की वजह से कैदियों को उनके स्पुर्द नहीं किया क्योंकि तुम्हें अस्कलान में शिकस्त हुई थी, तुम रुसवा हुए। जब कैदी बच गए अब तुम कहते हो कि उनका पीछा करना है, ये तुम्हारे जाती अज़ाइम है। इस सब की कीमत दरअसल कैद है, लेकिन मैं अपने भाई की खातिर आपको कैद करने के बजाय यहीं रहने का मशवरा दूंगा, इस बार तुम्हें सुनना पड़ेगा। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, मैंने अपने बाबा के साथ कसम खाई है, मैं अपनी कसम नहीं तोड़ूंगा, मैं उन्हें पकड़ूंगा। जवाबन नसरुद्दीन कहता है, मैं खानदान का सबसे बड़ा हूँ, तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। इस पर सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, मैं आपके बड़ेपन का एहतराम करता हूँ लेकिन इससे आगे ना बढ़ें, अगर आप मेरे रास्ते में रुकावट डालने की कोशिश करेंगे तो मैं आपको भी नहीं पहचानूंगा, ये बात जान लें। ये कहते साथ ही सलाहुद्दीन अय्यूबी गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। उधर जंगल में बादशाह बालदन कहता है, गैब्रियल सुलेबी अदालत भी तुम्हें सजा देगी, मेरे ऊपर तलवार खींचना तुम्हें महंगा पड़ेगा, अब तुम सुलेबी जंगजू नहीं रहोगे, तुम्हारी सारी ताकत खत्म हो गई है। तो गैब्रियल कहता है, मेरी ताकत नाकाबिले तस्खीर है, मेरा भाई ग्रिगोर रास्ते में है, वो जल्दी यहाँ होगा क्योंकि यहाँ मारने के लिए बहुत सारी जानें हैं, अगर आप मेरे रास्ते से ना हटे तो मैं अपने भाई ग्रिगोर के साथ आप सबकी जान लेने से भी गुरेज नहीं करूंगा। ये सुनकर बादशाह बालदन को बहुत गुस्सा आता है। इधर सलाहुद्दीन अय्यूबी बाहर सैन में आते हैं तो इज्जतुद्दीन उनसे कहता है, अगर तुम अपने सिपाहियों को ढूंढ रहे हो तो मत ढूंढो सलाहुद्दीन, हमने उन सबको जिंदान में बेच दिया है। ये सुनकर सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, ये करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जवाबन इज्जतुद्दीन कहता है, तमाम गलतियों के बाद शुक्र करो कि हमने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया है, तुम में से कोई भी कहीं नहीं जाएगा बशमूल तुम्हारे। मेरे चाचा नूरुद्दीन की ये हालत करने वाले आप ही हैं, कम से कम उनके पास बैठकर दुआ करो ताकि आखिरी सांसों में किसी काम आओ। ये सुनते साथ ही सलाहुद्दीन अय्यूबी उसे एक जोरदार थप्पड़ रसीद करते हैं। ये देखकर उसके सिपाही आगे बढ़ते हैं मगर सलाहुद्दीन अय्यूबी का गुस्सा देखकर फिर से पीछे हट जाते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी इज्जतुद्दीन को दबोचते हुए कहते हैं, वो शख्स जिसने मेरे कैदियों को छुड़वाया और मेरे बाबा पर वार किया, एक बार जब मैं उसे जाहिर कर दूंगा तब मेरा फर्ज पूरा होगा, तुम में से कोई भी मुझे रोक नहीं सकता, अब जाकर अपने बाबा को ये बता दो। ये कहते साथ ही वो उसे धकेलकर आगे बढ़ते हैं तो इज्जतुद्दीन कहता है, अगर तुमने खुद से जाने की कोशिश की तो हम उन सबको मार डालेंगे, हुक्म न मानने पर तुम्हें भी सजा दी जाएगी। ये सुनकर सलाहुद्दीन अय्यूबी शदीद गुस्से में उसकी जानिब अमीर रेहानी सलाहुद्दीन अय्यूबी के सिपाहियों को जंजीरों में जकड़े हुए जिंदान की जानिब ले जा रहा है। सिपाही अहमद कहता है, हमने इस सियासत के लिए अपनी जानें दी और खून बहाया, आप हमें इस तरह
जंजीरों में जकड़ नहीं सकते। फिर पारस कहता है हम सरहद के गाजी हैं, हम मलिक सलाहुद्दीन के साथी हैं, आप हमें मुजरिमों की तरह जिंदान में नहीं डाल सकते। तो अमीर रेहानी कहता है तुम सरहद के गाजी नहीं हो, बल्कि तुम सब फसादी हो जिन्होंने रियासत से बगावत की। तुम सब ने हमें परेशानी में डाल दिया, यहाँ तक कि तुम ही सुल्तान नूरुद्दीन को मारने की वजह बने हो। तुम और तुम्हारे बड़े मलिक सलाहुद्दीन, सबको वही सजा मिलेगी जिसके तुम मुस्तहिक हो। सिपाहियों जल्दी करो, खींचो इन्हें। कुछ देर आगे बढ़ने के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी उनके सामने खड़े होते हैं। ये देखकर अमीर रेहानी को बहुत गुस्सा आता है। उधर उस्ताद आजम और विक्टोरिया मुसलसल जंगियों से भाग रहे होते हैं, जबकि शेरको और उसके साथी मुसलसल उनका ताकुब कर रहे होते हैं। शेरको निशानात का जायजा लेते हुए कहता है निशानात यहाँ पर मुंतशिर हो जाते हैं, तुम लोग उस तरफ जाओ और बाकी कुछ दूसरी तरफ जाओ, होशियार रहना। सिपाहियों को फैलाने के बाद शेरको फिर से आगे बढ़ता है। इधर अमीर रेहानी घोड़े से उतरने के बाद सिपाहियों को लेकर सलाहुद्दीन अय्यूबी के सामने जा खड़ा होता है। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी गुस्से से कहते हैं फौरी तौर पर इनके हाथ खोल दो। इस पर अमीर रेहानी कहता है हमें मलिक नसरुद्दीन से हुक्म मिला है, हम उनकी इजाजत के बगैर नहीं छोड़ेंगे। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं अपनी औकात में रहो, मेरे सरहद के गाजियों को कोई हुक्म नहीं दे सकता, अब हुक्म की पैरवी करके इन्हें आजाद कर दो। जवाबन अमीर रेहानी कहता है इस खानदान के बड़े मलिक नसरुद्दीन हैं, उनका हुक्म सबसे आला है, अगर आप मुजाहमत करते हैं तो हमें भी तलवार चलाने का हुक्म दिया गया है। यह सुनकर सलाहुद्दीन अय्यूबी सिपाहियों को धकेलते हुए अमीर रेहानी के गले पर तलवार तान लेते हैं और कहते हैं अगर जरूरी हुआ तो मैं तुम्हारी गर्दन काट कर इन्हें आजाद कर सकता हूँ। अब अगर तुम में हिम्मत है तो मलिक नसरुद्दीन के हुक्म पर अमल करो और वो तलवार खींचो। इसी लम्हे सिपाहियों के साथ वहाँ पहुंचने वाला नसरुद्दीन कहता है सलाहुद्दीन तलवार नीचे रखो। नसरुद्दीन को देखकर सलाहुद्दीन अय्यूबी को बहुत गुस्सा आता है। नाज़रीन इसके बाद हम जंगल में देखते हैं कि दो नकाबपोश एक बार फिर शहजादे विक्टोरिया और उस्ताद आजम का रास्ता रोक लेते हैं और उनसे कहते हैं हथियार डाल दो। तो विक्टोरिया कहती है सलाहुद्दीन इतना मजबूत नहीं था कि हमें रोक सके, अगर तुम में इतनी हिम्मत है तो कोशिश करके देख लो। ये सुनते साथ ही सिपाही उन पर हमला कर देते हैं, मगर वो दोनों भी शहजादे विक्टोरिया की तलवार की भीड़ चढ़ जाते हैं और फिर रास्ता तब्दील करते हुए एक बार फिर से आगे बढ़ जाते हैं। उधर दमिश्क में सलाहुद्दीन अय्यूबी नसरुद्दीन से कहते हैं मुझे आपका बहुत एहतराम है, लेकिन आप हद से तजावुज कर रहे हैं। जवाबन नसरुद्दीन कहता है सलाहुद्दीन हद से आगे बढ़ने वाले आप हैं, आपने अपने वालिद को बिस्तर मर्ग पर लटा दिया। ये काफी नहीं था कि आपने अपने चचा के हुक्म की भी खिलाफवर्जी शुरू कर दी, जिन्हें आप अपना बड़ा कहते हैं। हालांकि आपके अमाल की सजा कैद है, लेकिन मैंने आपसे कहा कि पुरस्कून हो जाएं, मगर ऐसा लगता है कि तुम्हें कैद किए बिना नहीं रोका जा सकता, तुम भी अपने आदमियों के साथ जिंदान में जाओगे। ये सुनकर सलाहुद्दीन अय्यूबी उसकी जानिब बढ़ते हुए कहते हैं आप दोस्त हैं या दुश्मन? मुझे पकड़ने का मतलब है कि उन कैदियों को जाने देना, इसका मतलब हमारे अंदर गद्दार, अस्कलान, हज के रास्ते सबको खो देना है। जवाबन नसरुद्दीन चिल्लाते हुए कहता है गद्दार तुरान शाह है, तुमने खुद ही उसे पकड़ा था। जवाबन सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं वो गद्दार नहीं है, आप जिद क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा जो मेरे रास्ते में खड़ा होगा मैं उसे कुचल दूंगा। यह सुनकर नसरुद्दीन पीछे हटते हुए सिपाहियों से कहता है गिरफ्तार कर लो इसे। सिपाहियों को आगे करके खौफ के मारे वो खुद पीछे हटना शुरू हो जाता है। सिपाही हर तरफ से सलाहुद्दीन अय्यूबी पर रस्सियां फेंकना शुरू कर देते हैं। काफी देर तक दोनों तरफ से मुजामत जारी रहती है और कई सिपाहियों को रोंदने के बाद आखिरकार सलाहुद्दीन अय्यूबी को दबोच लिया जाता है। ये देखकर सलाहुद्दीन अय्यूबी के सिपाही खुद को छुड़वाने की भरपूर कोशिश करते हैं, मगर वो सब नाकाम रहते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी गरजते हुए कहते हैं तुम मुझे नहीं पकड़ सकते, जब मैं उन गुलामी की जंजीरों को तोड़ूंगा तो उनको तुम्हारे गले में डाल दूंगा, क्या तुम समझे चचा? उधर अस्कलान कबीले में अमीर मंसूर सुरैया खातून से कह रहा है देखो देखो तुम्हारा भाई दुश्मन के हाथ में कैद है, ये सब सलाहुद्दीन की वजह से हुआ है। जवाबन सुरैया खातून कहती हैं क्या आप जानते भी हैं कि क्या हुआ? अगवाकार फरार हो गए, सुल्तान नूरुद्दीन को जख्मी कर दिया गया। जवाबन अमीर मंसूर कहता है क्या वो अस्कलान और खलील के बारे में जानते थे? तुमने अपने हिस्से का काम कर दिया, उस मगलूब काफिर गैब्रिएल के जाल ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैं इंतजार करूंगा और वक्त आने पर अपने बेटे को छुड़वा कर उन सबको तबाह बर्बाद कर दूंगा। तो सुरैया खातून कहती हैं मैं गफलत में पड़ गई और हम पर भरोसा करने वालों से खयानत की, मेरे नाम पर गद्दार का दाग लग चुका है, लेकिन मैं इसको साफ करूंगी। ये कहते साथ ही सुरैया खातून जाने लगती हैं तो अमीर मंसूर ने पकड़ लेता है और कहता है तुम कहीं नहीं जाओगी। इस पर सुरैया खातून खुद को छुड़वाते हुए कहती हैं मैं जाऊंगी बाबा, मैं जाऊंगी, आप मुझे नहीं रोक सकते। ये सुनते साथ ही अमीर मंसूर एक जन्नाटेदार थप्पड़ उनके मुंह पर रसीद करते हैं और कहते हैं बहुत हुई तुम्हारी बदतमीजी। कबीले के सब लोग इस मंजर को देखने लग जाते हैं। तो अस्मा खातून कहती हैं हर कोई अपने काम पर वापस जाए, जबकि अमीर मंसूर सुरैया खातून से कहता है तुम ये मसला अब खत्म कर दो, सलाहुद्दीन को उतना ही जानो जितना वो तुम्हें जानता है, इसके अलावा सलाहुद्दीन के साथ कुछ नहीं। ये कहते साथ ही अमीर मंसूर चला जाता है और सुरैया खातून बहुत ज्यादा गमगीन होती है। उधर अमीर रेहानी सलाहुद्दीन अय्यूबी और उनके साथियों को जिंदान में डाल देता है और कहता है शहजादे को जिंदान में डालना मैं जानता हूँ कि कितनी बड़ी ज्यादती है, लेकिन आपने हमें मजबूर किया, अगर आपके बाबा ने ये देखा होता तो वो कितने शर्मिंदा होते। जवाबन सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं अगर मेरे बाबा यहाँ होते तो तुम ऐसी बदतमीजी ना करते, तुमने मेरी रियासत की तलवार मुझ पर ही उठाई, लेकिन दुआ करो अमीर शेर को कैदियों के पीछे है, अगर तुम्हारी वजह से गैब्रिएल बच गया फिर तुम्हें मेरे गजब से कोई नहीं बचा पाएगा। ये सुनते साथ ही अमीर रेहानी आगे बढ़ जाता है और जिंदान से सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं तुम मेरे गजब से नहीं बच पाओगे, याद रखना। उधर तलाश के दौरान शेरको को अपने दो सिपाहियों की लाशें मिलती हैं तो वो कहता है मेरे बादरों में तुम्हारे खून की कसम खाता हूँ कि मैं गद्दार को पकड़े बगैर वापस नहीं आऊंगा। फिर सिपाहियों से कहता है विक्टोरिया और उस्ताद आजम किले के करीब होंगे, जल्दी करो उन्हें पकड़ो, हम उन्हें पकड़कर मलिक सलाहुद्दीन के पास ले जाएंगे। तो वहाँ पहुंचने वाला गैब्रिएल कहता है मैं तुम्हारी लाश को सलाहुद्दीन के पास भेजूंगा शेर को। जवाबन शेर को तलवार बेनियाम करते हुए कहता है लेकिन तुम्हारी लाश किसी को नहीं मिलेगी। इसके साथ ही सुलेबी सिपाही चारों तरफ से उन्हें घेर लेते हैं और शेर को मजीद कहता है तुम जो भी कर लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम हमें रोक नहीं पाओगे। ये कहते साथ ही वो हमला कर देता है और लड़ाई छिड़ जाती है। शेरको के साथ मौजूद 4 से 5 सिपाही जल्दी मारे जाते हैं और लड़ते लड़ते सुलेबी सिपाही तलवारें शेरको के गले पर तान लेते हैं। ये देखकर गैब्रिएल कहता है तुम्हारा सुल्तान मर रहा है, तुम भी जल्द मर जाओगे। उधर इज्जतुद्दीन तुरान शाह की तलाश में उसके घर जा पहुंचता है और ऊंची आवाज में पूछता है तुरान शाह कहाँ है, सुल्तान को मारने वाला गद्दार कहाँ छुपा है। इस पर जमरत खातून कहती है वो यहाँ नहीं आया। तो इज्जतुद्दीन कहता है झूठ ना बोलो तुरान शाह, तुम बच नहीं सकते, गद्दार बाहर आओ। सिपाहियों तलाशी लो घर की। ये सुनते साथ ही सिपाही तलाशी लेने लग जाते हैं और फातिमा खातून कहती हैं आप ये क्या कर रहे हैं, ये हमारा घर है। जवाबन इज्जतुद्दीन कहता है मैं इस रियासत का मलिक हूँ, उस गद्दार ने आज हमारे सुल्तान पर वार किया, अगर आप उसे छुपाती हैं तो फिर आपको कीमत अदा करनी पड़ेगी। ये सुनकर फातिमा खातून कहती हैं मेरा बेटा गद्दार नहीं है, हमने इस रियासत के लिए अपने बहुत से बच्चे कुर्बान कर दिए, ये बात आप भी जानते हैं, आप उसे गद्दार नहीं कह सकते। तलाशी के बाद जब उन्हें कुछ नहीं मिलता तो इज्जतुद्दीन कहता है वो जिस सुराख में छुपा हुआ है मैं उसे ढूंढ लूंगा।
लूंगा और जब मैं उसे पकड़ूंगा तो मैं उसे छुपाने वालों से भी हिसाब लूंगा। ये कहते साथ ही इज्जतुद्दीन चला जाता है। उधर जंगल में गैब्रियल कहता है मार डालो इसे, मगर इसके साथ ही वहाँ पहुंचने वाला नसरुद्दीन कहता है रुक जाओ। फिर घोड़े से उतरकर आगे बढ़ते हुए कहता है इन्हें छोड़ दो गैब्रियल। तो गैब्रियल कहता है क्या मैं इन्हें छोड़ दूं ताकि ये विक्टोरिया और उस्ताद आजम को पकड़ लें? इस पर नसरुद्दीन कहता है ऐसा कुछ नहीं होगा, ये उनके पीछे नहीं जाएंगे। मैं बादशाह बाल्दन को पैगाम भेजूंगा और मुआहिदा करूंगा, ये मसला खत्म हो जाएगा। तो शेर को कहता है मुआहिदे का क्या मतलब है? अगर गैब्रियल ने उन्हें पकड़ लिया तो हमारे बनाए गए मंसूबे तबाह हो जाएंगे, हम उन्हें तलाश करने के बहुत करीब हैं, अब हिम्मत नहीं हार सकते। जवाबन नसरुद्दीन कहता है मैं तुम्हारी जान बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या तुम कत्ल होना चाहते हो? तो शेर को कहता है इसने हमारे बहुत से सिपाहियों को मार डाला, अपनी तलवारें खींचे और इस पर हमला करें। तो नसरुद्दीन कहता है मैं मजीद खून, जंग या नुकसान नहीं चाहता, तुम अपने सिपाहियों को लेकर पीछे हट जाओगे। ये सुनकर शेर को कहता है हमारे अंदर कोई गद्दार मौजूद है, ये सब उन्हें पकड़ने के बाद मालूम होगा कि आप नहीं समझते। तो नसरुद्दीन कहता है गद्दार तुम्हारा भतीजा है, तुरान शाह है, अब ये कबूल करो, सलाहुद्दीन की तरह कुछ ना करना। जवाबन शेर को कहता है मलिक सलाहुद्दीन कह चुके हैं कि तुरान शाह गद्दार नहीं है, मैं उनकी बात मानता हूँ। मलिक सलाहुद्दीन आएंगे और हमारे साथ शामिल होंगे, हम हार नहीं मान सकते। तो नसरुद्दीन कहता है मलिक सलाहुद्दीन कहीं नहीं जा सकता, मैंने उसे जिंदान में डाल दिया है, वो खानदान की बात ना सुनने की कीमत चुकाएगा। अगर तुम भी अपनी मर्जी करोगे तो तुम भी अदा करोगे। शेर को काफी देर से ये मामला देखने वाला गैब्रियल कहता है अच्छा तो फिर हम चलते हैं। ये कहते साथ ही वो शेर को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। उधर इज्जतुद्दीन बहुत बदतमीजी करता हुआ खवातीन के बाजार में दाखिल होता है और एक खातून को पीछे धकेल देता है। फिर कहता है औरतों के दरमियान छुपकर बैठे हो बुज़दिल, बाहर आओ बाहर आओ। इज्जतुद्दीन की बातें सुनकर तुरान शाह की बहन भागती भागती आती है और कहती है बुज़दिल तुम होगे, मगर जैसे ही वो करीब पहुंचती है तो इज्जतुद्दीन उसे एक जोरदार थप्पड़ रसीद करता है। ये देखकर अय्यूब भी भागते भागते वहाँ पे आते हैं और इज्जतुद्दीन को दबोच लेते हैं। अमीर अय्यूब पूरी कुव्वत के साथ उसका गला दबाते हुए कहते हैं तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई, तुमने मेरी बेटी पर हाथ कैसे उठाया, मैं तुम्हें मार डालूंगा। इस लम्हे एक सिपाही कहता है अमीर हज़रत इन्हें जाने दें वरना हमें मजबूरन तलवारें निकालनी पड़ेंगी। इसके बावजूद अमीर अय्यूब नहीं छोड़ते तो उनकी बेटी आगे बढ़कर उन्हें बहुत मुश्किल से पीछे करती है और कहती है बाबा आप अपनी जान खतरे में ना डालें, ये लोग आपके साथ कुछ बुरा कर देंगे, बाबा इसे जाने दें। इसके साथ ही अमीर अय्यूब से छोड़ देते हैं। तो इज्जतुद्दीन कहता है तुमने मेरा गला घोंटने की कोशिश की, हाँ हम पहले ही तुम्हारे पूरे खानदान को गद्दार समझते थे, मैं तुम सबसे हिसाब लूंगा। उधर जंगी महल में सुरैया खातून सिपाहियों से कहती है मैं मलिक सलाहुद्दीन से मिले बगैर वापस नहीं जाऊंगी, उन्हें बता दो जाकर। इसलिए मैं वहाँ पहुंचने वाली बैरा कहती है क्या तुम्हें कोई आदाब नहीं है, इस तरह महल के बीचों बीच क्यों चीख रही हो? इस पर सुरैया खातून कहती है मैं मलिक सलाहुद्दीन से मिलना चाहती हूँ। जवाबन बैरा कहती है कोई सलाहुद्दीन यहाँ नहीं है। तो सुरैया खातून कहती है आपका क्या मतलब है? इसके साथ ही मलिक नसरुद्दीन अमीर रेहानी के साथ वहाँ आता है और पूछता है यहाँ क्या हो रहा है? तो बैरा कहती है यह अस्कलान की नाकाम लड़की सलाहुद्दीन से मदद मांगने आई है। यह सुनकर नसरुद्दीन कहता है सलाहुद्दीन कैद में है, तुम भी अपने कबीले वापस जाओ। तो सुरैया एकदम से कहती है क्या कैद में? उसका क्या जुर्म था कि आप लोगों ने उसे कैद में डाल दिया? इस पर अमीर रेहानी कहता है क्या अब हम तुम्हें भी इसका जवाब देंगे? फिर नसरुद्दीन सिपाहियों से कहता है सिपाहियों इसे ले जाओ। ये सुनते साथ ही सिपाही सुरैया खातून को जाकर दरवाजे से बाहर फेंक देते हैं। उधर जिंदान में सलाहुद्दीन अय्यूबी के बार बार पुकारने पर एक सिपाही वहाँ आता है। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी उससे पूछते हैं क्या अमीर शेर को से कोई खबर आई है, क्या उन्होंने कैदियों को पकड़ा? जवाबन वो सिपाही कहता है बेकार खबरों का इंतजार मत करो, मलिक नसरुद्दीन ने अमीर शेर को वापस बुला लिया है, अब ज्यादा शोर मत मचाओ। सिपाहियों अगली अफरा तफरी का बाइस बनते हैं तो वो करो जो जरूरी है। सिपाही के इस तरह के रवैये पर सलाहुद्दीन अय्यूबी को बहुत गुस्सा आता है और वो कहते हैं मेरा गुस्सा बहुत बढ़ गया है, ये दीवारें और ये लोहे के दरवाजे तुम्हें मेरे गजब से नहीं बचा सकेंगे। ये बात याद में मौजूद बादशाह बाल्दन आगे बढ़ते हुए सोफिया से कहता है फौरन सिपाहियों को लेकर अस्कलान जाओ और वो तमाम मालो दौलत जो वहाँ है यहाँ ले आओ। तो सोफिया कहती है लेकिन सलाहुद्दीन ने हमें इस बात पर धमकी दी थी। जवाबन बादशाह बाल्दन कहता है सलाहुद्दीन अब जिंदान में है और वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है, सुल्तान नूरुद्दीन भी मरने के करीब है, वो अब हमें मजीद नहीं रोक सकते, जल्दी से अस्कलान के लिए रवाना हो जाओ। इसलिए हमें कमांडर वहाँ पे आकर कहता है मलिक नसरुद्दीन ने आपको दमिश्क में एक मुआहिदा करने की दावत दी है। यह सुनकर बाल्दन बहुत खुश होता है। इधर जंगी महल में तबीब नसरुद्दीन से कहता है उन्हें जो जख्म मिला वो बहुत गहरा है, हम चाहे कुछ भी कर लें सुल्तान की हालत को मजीद बेहतर नहीं कर सकेंगे। इस पर बैरा पूछती है आपको ये लगता है कि उनका ठीक होना मुश्किल है, क्या ऐसा ही है ना? जवाबन तबीब कहता है हमने अपनी पूरी कोशिश की है, बाकी शिफा अल्लाह के हाथ में है, हम दुआ के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। तबीब के जाने के बाद रेहानी खुश होते हुए नसरुद्दीन से कहता है सुल्तान की तबीयत ठीक नहीं है और सलाहुद्दीन भी जिंदान में है, तख्त खाली नहीं रह सकता मलिक हजरत। ये सुनकर नसरुद्दीन कहता है तमाम अमीरों को इजलासगाह में जमा करें, ये तख्त संभालने का वक्त है। यह सुनते साथ ही अमीर रेहानी खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। उधर इस खबर की हलचल जिंदान में भी जा पहुंचती है और सलाहुद्दीन अय्यूबी के पूछने पर सिपाही कहता है मलिक नसरुद्दीन नायब के तौर पर तख्त संभालने लगे हैं, उसी की तैयारियां हो रही हैं। यह सुनकर सलाहुद्दीन अय्यूबी को बहुत गुस्सा आता है और वो कहते हैं वो कौन होता है जो नायब के तौर पर तख्त संभाले? तो ये मेरे बाबा के तख्त का लालच था, ये गद्दारी है। तो सिपाही कहता है सुल्तान नूरुद्दीन ने उम्मीद छोड़ दी है, नए सुल्तान मलिक नसरुद्दीन बनेंगे। इस पर सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं जब तक मैं जिंदा हूँ मैं किसी को अपने बाबा के तख्त पर नजर नहीं रखने दूंगा, मैं इस रियासत का बेटा हूँ। इस पर सिपाही कहता है आप मलिक नसरुद्दीन के कैदी हैं, वो आपकी किस्मत का फैसला करेंगे। ये सुनते साथ ही सलाहुद्दीन अय्यूबी उस सिपाही को दबोच लेते हैं। ये देखकर बाकी सिपाही उसे छुड़वाने के लिए मुदाखलत करते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इस कदर जोर से उसे पकड़ा होता है कि पूरा जिंदान हिल रहा होता है और काफी देर तक उस सिपाही को अज़ियत देने के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी उसे छोड़ देते हैं और कहते हैं तुम सबकी किस्मत मेरे हाथ में होगी, क्या तुमने सुना? उधर नसरुद्दीन सुल्तान के दीवान में दाखिल होता है और उसकी नजरें मुसलसल तख्त पर टिकी होती हैं। तख्त के करीब पहुंचकर वो उस लम्हे को याद करता है जब कई साल पहले उनके वालिद की वफात पर उमर मल्लाह ने उन दोनों भाइयों से कहा था आपके वालिद इमादुद्दीन जंगी अपने मुहाफिज के गद्दाराना हमले में मारे गए। फिर उमर मल्लाह ने सुल्तान इमादुद्दीन की अंगूठी उतार ली थी और मजीद कहा था अपनी आखिरी सांसों में खुद मुख्तारी का निशान लिए उन्होंने इस अंगूठी को अपने एक बेटे को देने की वसीयत की और उनका वो बेटा नूरुद्दीन है। नूरुद्दीन तुम्हारे बाबा ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें उनके ओहदे पर मुकर्रर करूं, उनकी अमानत को तुम संभालोगे। ये कहते साथ ही उमर मल्लाह ने अंगूठी नूरुद्दीन जंगी को दे दी थी, जिसे देखते हुए नसरुद्दीन को बहुत गुस्सा आया था और नसरुद्दीन की ये नफरत नाज़रीन कई साल गुजरने के बाद कम होने के बजाय बढ़ चुकी है। इस ख्याल के बाद नसरुद्दीन कहता है ये वो वक्त है जब जो असल मुस्तहिक था उसे उसका हक मिले नसरुद्दीन। ये कहते साथ ही वो जाकर तख्त पर बैठ जाता है। इसलिए में अमीर रेहानी, अमीर शेरको और वजीर वहाँ पे दाखिल होते हैं। नसरुद्दीन को तख्त पर बैठा हुआ देखकर अमीर
अमीर रिहानी के अलावा बाकी दोनों को ये बात काफी नागवार गुजरती है और नसरुद्दीन कहता है, हकीम का कहना है कि हमारे सुल्तान के लिए खड़ा होना मुश्किल है। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि फौरी तौर पर हालात पर काबू पाना जरूरी है। इस वजह से बतौर तख्त नायब रियासत अब मेरे हाथों में है। ये सुनकर अमीर गुस्से से कहते हैं, ये नाकाबिले कबूल है। अगर मसला रियासत का है तो रियासती कौंसिल वही करे जो जरूरी है। जब तक सुल्तान जिंदा है कोई उनके तख्त पर बैठकर अपनी हुकूमत का ऐलान नहीं कर सकता। तो नसरुद्दीन कहता है, क्या आपने सुल्तान का हाल नहीं सुना? अगर कोई मौजज़ा हो गया और वो खड़े हो गए तो वो आकर अपने तख्त पर बैठ जाएंगे, लेकिन जबकि सब कुछ वाज़ेह है तो मैं तख्त को खाली नहीं छोड़ सकता। खानदान के बड़े होने की हैसियत से मैं नाइब हूँ। ये सुनकर अमीर शेर को कहता है, अगर खानदान में से कोई था तो वो सुल्तान नूरुद्दीन का वारिस मलिक सलाहुद्दीन था, लेकिन आपने उसे नाहक कैद में डाल दिया। ये सुनकर नसरुद्दीन कहता है, क्या तुम मुझे हक और हुकूक सिखाओगे? यहाँ एक कायदा है, उसको मानना सब पर फर्ज है। मेरा पहला काम सलाहुद्दीन की वजह से होने वाली परेशानियों को दूर करना है। मैं बादशाह बाल्दन के साथ एक मुआहदा करूंगा और हज का मसला खत्म कर दूंगा। ये सुनकर शेर को कहता है, मलिक सलाहुद्दीन ने इस मकसद के लिए अपनी जान खतरे में डाली। आप सिपाहियों का बदला और हज का रास्ता छोड़कर गद्दार का साथ दे रहे हैं। नसरुद्दीन कहता है, सलाहुद्दीन ने फरेब का पीछा किया। हमारे लिए जो अहम है वो हज का रास्ता है, ना कि वो सिपाही जो अस्कलान बचाना चाहते हैं, क्योंकि अस्कलान बचाना उनका अपना काम है। इसके अलावा गद्दार वाजे है और वो गद्दार तुरान शाह है। मसला खत्म हो गया। ये सुनकर शेरको को बहुत गुस्सा आता है। इसलिए मैं मलका दीवान के बाहर पहुंचकर कहती है, सुल्तान नूरुद्दीन के मरने से पहले ही उनकी कब्र खोद रहे हो। हाँ गद्दारो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उनके तख्त पर बैठने की? इसलिए मैं दूसरी तरफ से आने वाली बैरा कहती है, महल में ये किस तरह की बदतमीजी है? क्या आप रियासत के आदाब भूल गई हैं? जवाबन मलका कहती है, क्या रियासती आदाब ये है कि मौके को गनीमत समझकर गिद्धों की तरह तख्त पर बैठा जाए? तो बैरा कहती है, रियासत और अवाम दोनों इंतशार का शिकार हैं। मलिक नसरुद्दीन ने बतौर नायब अपना फर्ज अदा किया। आपका फर्ज है कि रियासत के बारे में सोचें और बैत करें। यह सुनकर मलका मजीद भड़क जाती है और कहती है, मैं सुल्तान नूरुद्दीन की खातून हूँ, मैं किसी की बैत नहीं करती। सुल्तान नूरुद्दीन की हुक्मरानी रहेगी जब तक कि वो आखिरी सांस ना ले लें। दीवान के अंदर शेरकुल नसरुद्दीन से कहते हैं, आप तख्त पर कब्जा कर रहे हैं। अगर उसूल ये है तो मैं इस उसूल को तस्लीम नहीं करता। फिर दूसरे अमीर कहते हैं, आपने हर उस शख्स की राह में पत्थर रख दिया है जिसने रियासत के लिए अपनी जान और खून दिया। जहाँ कोई निजाम नहीं है वहाँ कोई कायदा नहीं। उन दोनों की बातें सुनने के बाद नसरुद्दीन उठकर आगे बढ़ता है और कहता है, अभी के लिए वजीर की मोहर अमीर रेहानी के हवाले कर दो और शेर को तुम भी अपनी तलवार हवाले कर दो। मैं आप दोनों को तमाम फराइज से मुअत्तल करता हूँ। सबको मालूम होना चाहिए कि यहाँ रियासत में हूँ। जो नहीं झुकेगा उसका सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। बाहर मलका बैरा से कहती है, मैं मलिक नसरुद्दीन को तख्त से उतार कर अपना फर्ज पूरा करूंगी। उसकी बात सुनते साथ ही बैरा बुलंद आवाज से कहती है, सिपाहियों। आवाज मिलने पर सिपाही तलवारें बेनियाम कर लेते हैं। ये देखकर मलका कहती है, क्या तुम सुल्तान नूरुद्दीन का खाकर उसकी खातून के खिलाफ तलवारें खींचोगे? ये कहते साथ ही मलका सिपाहियों पर हमला करके उन्हें बुरी तरह से जख्मी कर देती है, मगर मौका मिलने पर बैरा उसकी तलवार गिरा देती है और दीवान के दरवाजे के सामने आते हुए कहती है, सबने मलिक नसरुद्दीन की हुक्मरानी की बैत की, आपका वक्त खत्म हो गया है। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं उमर मल्लाह और दरवेश सुल्तान की सेहतयाबी के लिए विर्द कर रहे होते हैं। अगले मंजर में मलका सुल्तान के पास मौजूद होती है और उनकी हालत का जायजा ले रही होती है। दूसरी तरफ उमर मल्लाह और दरवेश जिक्र में बहुत ज्यादा खो जाते हैं और झूम झूम कर अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करते हैं। जिंदान में सलाहुद्दीन अय्यूबी और उनके जांबाज भी परेशान दिखाई देते हैं और पहली दफा हम उन्हें इस तरह से बेबस देखते हैं, जबकि उमर मल्लाह के आदमी गद्दार जंगी सिपाहियों को मारते हुए जिंदान की जानिब पेशकदमी कर रहे होते हैं और उनके चेहरे ढके होते हैं। जिंदान के अंदर हलचल देखकर सलाहुद्दीन अय्यूबी और उनके साथी भी खड़े हो जाते हैं, जबकि उमर मल्लाह के आदमी मुसलसल गद्दारों को जहन्नुम वासिल कर रहे होते हैं और कई सिपाहियों को मारने के बाद बिलाखिर वो जिंदान के बाहर पहुंच जाते हैं। उनके जिंदान के बाहर पहुंचते साथ ही दूसरी तरफ उमर मल्लाह एक गहरी सांस लेते हैं। इधर जिंदान से निकलते साथ ही सलाहुद्दीन अय्यूबी अपनी मदद करने वालों से पूछते हैं, तुम लोग कौन हो? जवाबन एक शख्स कहता है, हम वो लोग हैं जो आपको कहीं ले जाने आए हैं, हमारे साथ चलें। ये सुनते साथ ही वो उमर मल्लाह के आदमियों के साथ चल पड़ते हैं। अगले मंजर में हम देखते हैं कि वो सब उस मुकाम पर पहुंचते हैं जहाँ पे उमर मल्लाह दो बुजुर्गों के साथ मौजूद होते हैं और सलाहुद्दीन अय्यूबी को देखकर उमर मल्लाह कहते हैं, इधर आओ सलाहुद्दीन। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी बाकी लोगों की तरफ देखते हुए पूछते हैं, ये कौन है और ये कहाँ से आए हैं? जवाबन उमर मल्लाह कहते हैं, हजारों साल की रियासती रवायत की जड़ें जंगी रियासतों से मिलती हैं। ये इस्लाम के कल्ब अनातोलिया से आए हैं जो आलिम इस्लाम से हिंदुस्तान तक फैला हुआ है। उनकी बात सुनकर सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, मैं अपने आप को जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए वक्फ करता हूँ, मजलूमों का साया बनने और असीर जमीनों को आजाद करने के लिए वक्फ करता हूँ। जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूँ या फतह है या शहादत है। तो उमर मल्लाह कहते हैं, या फतह या शहादत। बहुत से ऐसे हैं जो आपके चुने हुए इस मुकद्दस रास्ते के अलमरदार बनेंगे। तकदीर ने आपको एक हदूद दी है, ये हदूद अनातोलिया से लेकर मिस्र तक जाती है, मक्का मदीना से उर्फा तक कुछ इस मकसद का ताज होगा। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, उन्होंने मेरे रास्ते में खयानत की दीवारें खड़ी कर दी, मैं तब तक नहीं पहुंच सकता जब तक कि मैं उन दीवारों को ना ढहा दूं। इस पर उमर मल्लाह कहते हैं, हमने इसी वजह से आपको अंधेरों से निकाला, आप अमानत के असल मालिक हैं। ये आपका फर्ज है कि जो आपको धोखा देते हैं उनके साथ वही करें जो जरूरी हो। अल्लाह की मदद और हमारी मदद आपके साथ है, जाएं, रास्ता आपका इंतजार कर रहा है। जंगी महल के दीवान में नसरुद्दीन बादशाह बाल्दन के साथ मौजूद है और मुआहिदा करते हुए कहता है, हम शहजादी विक्टोरिया और उस्ताद आजम को हाथ नहीं लगाएंगे, हमारी तरफ से अब कोई हमला नहीं होगा, बदले में आप हज के रास्ते से हट जाएंगे। तो बाल्दन पूछता है, क्या आपके पास इस मुआहिदे पर मोहर लगाने का इख्तियार है? इस पर नसरुद्दीन मोहर निकालते हुए कहता है, मैं तख्त का नाइब हूँ, फैसला मेरा है। मजीद ये कि सुल्तान नूरुद्दीन का मकसद भी हज का रास्ता है, ये उनकी भी ख्वाहिश है। ये कहते साथ ही वो मुआहिदे पर मोहर लगा देता है। तो बाल्दन पूछता है, सलाहुद्दीन के बारे में क्या ख्याल है? ये सुनकर नसरुद्दीन कहता है, सलाहुद्दीन अब कुछ नहीं करेगा, वो या तो मेरी बैत करेगा या जिंदान में सड़ेगा। जबकि बाहर से सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने साथियों के साथ दीवान की तरफ आ रहे होते हैं। उन्हें देखकर गद्दार सिपाही हरकत करने की कोशिश करते हैं, मगर सलाहुद्दीन अय्यूबी के सिपाही उन्हें बिल्कुल रोक देते हैं और सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, मैं सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का बेटा सलाहुद्दीन हूँ, कोई तलवार मेरा रास्ता नहीं रोक सकती। तो एक सिपाही कहता है, हम बिस्तर मर्ग पर मौजूद नूरुद्दीन जंगी का नहीं बल्कि तख्त के मालिक नसरुद्दीन जंगी का हुक्म मानते हैं, आप भी बैत कर लें वरना हमारी तलवारें आपसे बैत करवाएंगी। ये कहते साथ ही वो तलवार बेनियाम कर लेता है, मगर सलाहुद्दीन अय्यूबी पलक झपकते साथ ही उसकी गर्दन काट डालते हैं। ये देखकर बाकी सिपाही भी डर जाते हैं और पीछे हट जाते हैं। उनके पीछे हटते साथ ही सलाहुद्दीन अय्यूबी तलवार के साथ दीवान में दाखिल हो जाते हैं। ये देखकर नसरुद्दीन गुस्से से कहता है, सलाहुद्दीन तुम कैसे निकले? जवाबन सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, तुम्हारी खयानत की जंजीरें तोड़कर। ये सुनकर नसरुद्दीन कहता है, तुम किस पर गद्दारी का इल्जाम
गा रहे हो, तमीज से बात करो। जवाबन सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, तुमने मुझे जिंदान में डाल दिया, तुमने अमीर शेरको को उनके पीछे जाने से रोका, तुमने मेरे बाबा के तख्त पर नजर रखी, अब तुम इस कागज के एक टुकड़े के साथ हमारे तमाम मकासद बेच रहे हो। तो बादशाह बाल्दन मुआहिदा सामने करते हुए कहता है, हमने तख्त के नायब के साथ मुआहिदा किया, तुम्हारे पास अब कोई इख्तियार नहीं है। यह सुनकर सलाहुद्दीन अय्यूबी तलवार के वार से मुआहिदा काट डालते हैं और कहते हैं, जहाँ खयानत होगी मेरी तलवार उसे काट देगी। मैं सुल्तान नूरुद्दीन का जानशीन, इस तख्त का असल वारिस और इस रियासत का निगहबान हूँ। अगर तुम मुझसे मुआहिदा करना चाहते हो तो मेरी शराइत वाज़ेह है, तुम मुझे अस्कलान, हज का रास्ता और वो गद्दार भी दोगे जिसने तुम्हारे साथ ताउन किया, तो मुझे सब कुछ दोगे। यह सुनकर बादशाह बाल्दन कहता है, हम तुम्हारी तलवार के आगे नहीं झुकेंगे। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, फिर उस दिन का इंतजार करो जब मेरी तलवार तुम्हारे सर पर गिरेगी। तुमने विक्टोरिया और उस्ताद आजम को धोखे से हासिल किया, तुमने मेरे बाबा का खून बहाया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं जो चाहूंगा हासिल करूंगा। अब ये कागज उठाओ और जाओ। गैब्रियल से कहने के सलाहुद्दीन ने अपनी तलवार खींच ली है, तुम और वो गद्दार जिसने तुम्हारे साथ ताउन किया इस कागज की तरह टुकड़े टुकड़े होगा। यह सुनते साथ ही बादशाह बाल्दन आधा अधूरा मुआहिदा लेकर चला जाता है और सलाहुद्दीन अय्यूबी नसरुद्दीन से कहते हैं, मैंने तुम्हें खानदान का बड़ा समझकर इज्जत दी, लेकिन तुम मेरे बाबा की आखिरी सांस लेने से पहले उनके तख्त पर बैठ गए, तुमने मेरी इज्जत का जवाब गद्दारी से दिया। नसरुद्दीन चिल्लाते हुए कहता है, मैं अपने हिस्से का काम करूंगा, क्या इस अफरा तफरी में रियासत बेआसरा नहीं रह जाएगी? जवाबन सलाहुद्दीन अय्यूबी गरजते हुए कहते हैं, रियासत क्या बेआसरा रहेगी? अगरचा मेरे बाबा खड़े नहीं हो सकते लेकिन उनका बेटा यहाँ मौजूद है, रियासत को अगर नायब की जरूरत है तो वारिस यहाँ है। तो नसरुद्दीन कहता है, क्या तुम वारिस हो? क्या तुमने हम सबको इन मुसीबतों में नहीं घसीटा? क्या तुम्हें लगता है कि हम तुम्हें अपना बड़ा मानकर अपने लिए मजीद परेशानी का बाइस बनने देंगे? जवाबन सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, तुम्हारी वजह से हम मुसीबत में फंस गए, अगर तुम कैदियों को हाथ से जाने नहीं देते तो हम सब कुछ ले सकते थे, लेकिन तुमने हमारे रास्ते रोक दिए। हज का रास्ता, अस्कलान और यहाँ तक के वो गद्दार जिसने मेरे बाबा को जख्मी किया, ये सब कुछ उन कैदियों को पकड़ने पर मुनसिर था। हमारे रास्ते क्यों रोके? तुम डरते क्यों हो? बोलो। तो नसरुद्दीन कहता है, मैं किसी चीज से नहीं डरता और गद्दार तुरान शाह है, तुम ये बात क्यों नहीं मानते? जवाबन सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, हम कैदियों को हासिल करेंगे तब तक सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा, तुरान शाह गद्दार है या नहीं सब कुछ सामने आ जाएगा। अब बताओ, तुम ये सब कुछ जानते हुए मुझे क्यों रोकते हो? तुम ये क्यों नहीं चाहते? जवाबन नसरुद्दीन कहता है, मैं नहीं चाहता कि रियासत मजीद परेशानी का शिकार हो और यही वजह है। इस पर सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, रियासत को तुमने कमजोर कर दिया है, अब से रियासत का बेटा, वारिस और हाकिम मैं खुद हूँ। फिर बुलंद आवाज से कहते हैं, दरवाजा खोलो। दरवाजा खुलते साथ ही तमाम अमीर और वजीर वहाँ पे आ जाते हैं और सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, वजारत की मोहर तब्दील करें। मैंने कहा फौरन। रेहानी काफी देर तक नसरुद्दीन की तरफ देखता रहता है और आखिरकार नसरुद्दीन के इशारे पर मोहर लौटा देता है। इसके बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी शेरको से कहते हैं, अमीर शेरको बतौर सिपाहियों के रहनुमा आप अपना फरीजा जारी रखेंगे, मैं उस्ताद आजम और विक्टोरिया का पीछा करूंगा। मलिक नसरुद्दीन को महल से निकाल दिया जाए, मेरे वापस आने तक ये महल में कदम नहीं रखेगा, ये तख्त के वारिस के अहकामात हैं, इसकी जमानत मेरी तलवार है, अगर कोई इसके खिलाफ फैसला करने की कोशिश करेगा तो वो मेरी तलवार के गजब का मजा चखेगा। ये कहते साथ ही सलाहुद्दीन अय्यूबी वहाँ से चले जाते हैं और नसरुद्दीन गुस्से में आंखें बंद कर लेता है। उधर अस्कलान कबीले में सुरैया खातून को घोड़े की जानिब जाता हुआ देखकर अस्मा खातून कहती है, सुरैया कैदियों के पीछे जाने का क्या मतलब है? क्या तुम पागल हो गई हो? तो सुरैया खातून कहती है, सब कुछ मेरी वजह से हुआ, सुल्तान नूरुद्दीन को मार दिया गया, सलाहुद्दीन को कैद कर दिया गया, ताहम वो कैदियों की बदौलत अस्कलान को बचाने की कोशिश कर रहा था। मैं विक्टोरिया और उस्ताद आजम को पकड़ूंगी और अपनी गलती का अजाला करूंगी। अस्मा खातून के भरपूर रोकने के बावजूद सुरैया नहीं रुकती और कबीले से रवाना हो जाती है। उधर सलाहुद्दीन अय्यूबी और उनके सिपाही एक बार फिर विक्टोरिया और उस्ताद आजम की तलाश में होते हैं और दूसरी तरफ कुछ जंगी सिपाहियों को जाता हुआ देखकर उस्ताद आजम विक्टोरिया से कहता है, ये सरहद के गाजी हैं। जवाबन विक्टोरिया कहती है, जंगी गहरा तंग करते जा रहे हैं, हमें जल्दी कुछ करना होगा। उधर गैब्रियल भी सिपाहियों के साथ उन्हीं की तलाश में होता है और सिपाहियों से पूछता है, क्या तुम लोगों को अभी तक सुराग नहीं मिला? आखिर कब आप लोग काम आओगे? इसलिए हमें घोड़े पर सवार कमांडर वहाँ पे आकर कहता है, जनाब सलाहुद्दीन वो जिंदान से फरार हो गया। यह सुनकर गैब्रियल को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, बेवकूफ नसरुद्दीन, एक सलाहुद्दीन को बिना रोक सका, वो विक्टोरिया और उस्ताद आजम के पीछे आया होगा, हमें उन्हें सलाहुद्दीन से पहले ढूंढना होगा। उधर शहजादी विक्टोरिया और उस्ताद आजम भागते भागते एकदम से रुक जाते हैं और शहजादी विक्टोरिया कहती है, कोई करीब आ रहा है। ये कहते साथ ही वो झाड़ियों में छुपकर चौकन्ने हो जाते हैं। उनके करीब आने पर वो दोनों एकदम से उन पर तलवारें तान लेते हैं, मगर वो सब सुलेबी सिपाही होते हैं। सिपाहियों को देखकर उस्ताद आजम बहुत खुश होता है और एक सिपाही उनसे कहता है, गैब्रियल के हुक्म से हम आपको ढूंढ रहे थे जनाब, चलें हमारे साथ चलें। उधर महल से निकाले जाने के बाद नसरुद्दीन अपने घर वालों के साथ मौजूद होता है। इज्जतुद्दीन कहता है, वो हमें महल से कैसे निकाल सकते हैं? सुल्तान नूरुद्दीन पहले ही बिस्तर मर्ग पर हैं, फिर क्या होगा? तो बहरा नसरुद्दीन से पूछती है, क्या तुम तख्त सलाहुद्दीन के लिए छोड़ दोगे? इस पर इज्जतुद्दीन कहता है, फौज का कमांडर शेरको और वजीर भी सलाहुद्दीन का साथ दे रहे हैं, मजीद ये कि वो यहाँ हमें ज़ेरे निगरानी रख रहा है, इसलिए मैं वहाँ पे रेहानी आता है और कहता है, मलिक हजरत मैंने जरूरी कुव्वत इकट्ठी कर ली है, महल की तरफ पेशकदमी करके अपना हक छीनने का वक्त आ गया है। तो नसरुद्दीन पूछता है, अमीर रेहानी आप किस कुव्वत की बात कर रहे हैं? जवाबन रेहानी कहता है, फौज के अंदर हमारी ताकत। उसके ये कहते साथ ही फौज का एक कमांडर वहाँ आता है। उधर शहजादी विक्टोरिया और उस्ताद आजम सिपाहियों के साथ मुसलसल भाग रहे होते हैं कि इसलिए पीछे से उन पर तीर बरसते हैं, जिसके नतीजे में बहुत से सुलेबी सिपाही मारे जाते हैं और वो सब गिर जाते हैं। तीर मारने वाले सलाहुद्दीन अय्यूबी होते हैं जो कहते हैं, अगर हमसे बच भी जाओ तो कोई निजात नहीं। जवाबन उस्ताद आजम तलवार उनकी जानिब करते हुए कहता है, हम भी हार नहीं मानने वाले सलाहुद्दीन। फिर शहजादी विक्टोरिया कहती है, इस बार तुम हमें नहीं रोक सकते, सिपाहियों हमला करो। यह सुनते साथ ही सलाहुद्दीन अय्यूबी और उनके साथी भी घोड़ों से उतरने के बाद आगे बढ़ते हैं और वहाँ पे लड़ाई शुरू हो जाती है। सलाहुद्दीन अय्यूबी और उनके जांबाज सुलेबी सिपाहियों को काट रहे होते हैं, जबकि विक्टोरिया और उस्ताद आजम भी भरपूर जवाब दे रहे होते हैं, मगर अपनी मौत को सामने देखकर शहजादी विक्टोरिया और उस्ताद आजम अपने अपने रास्ते भाग पड़ते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी खुद उस्ताद आजम की तरफ जबकि उनके साथी शहजादी विक्टोरिया की जानिब भाग पड़ते हैं। इधर कमांडर नसरुद्दीन से कहता है, अब आप एक रियासत हैं, मैं भी महल के मुहाफिजों के कमांडर की हैसियत से आपके मातहत हूँ, जैसे ही आप हुक्म देंगे बाकी दस्ते भी हमारे साथ शामिल हो जाएंगे। तो बहरा कहती है, सलाहुद्दीन ने तख्त के हवाले से आपकी बेइज्जती की मलिक हजरत, वो तलवार से इसकी कीमत अदा करेगा, तख्त आपका है। इसके बाद अमीर रेहानी कहता है, आपके साथ होने वाले जुल्म के खिलाफ हम आपके साथ हैं। सलाहुद्दीन ये समझता है कि पूरी फौज उसके पीछे है, लेकिन वो अपने सामने सैकड़ों तलवारें देखेगा। यह सुनकर नसरुद्दीन कहता है, सिपाहियों को जमा करो, हम महल पर हमला करके तख्त छीन लेंगे, हम बगावत करने वालों का सर कलम कर देंगे। उधर गैब्रियल जैसे ही आगे बढ़ता है तो रास्ते में अपने सिपाहियों की लाशें ही लाशें
देखता है। फिर वहाँ मौजूद एक जिंदा सिपाही से पूछता है ये किसने किया। जवाबन वो सिपाही कहता है सलाहुद्दीन ने। ये सुनकर गैब्रियल को बहुत गुस्सा आता है और वो पूछता है क्या आपने विक्टोरिया और उस्ताद आजम को देखा है। जवाबन वो सिपाही कहता है वो भाग गए हैं। ये सुनते साथ ही गैब्रियल खड़े होकर कहता है फौजी अतराफ में फैल जाओ, हम उन्हें सलाहुद्दीन से पहले ढूंढ। उस्ताद आजम सलाहुद्दीन यूबी से मुसलसल भाग रहा होता है। सलाहुद्दीन यूबी और उनके साथी भी बर्क रफ्तारी के साथ उसके पीछे आ रहे होते हैं। दूसरी तरफ शहजादी विक्टोरिया भी छुपते छुपाते हुए भाग रही है। सुरैया खातून भी सिपाहियों के साथ उन्हीं की तलाश में है और कीचड़ पर बने निशानात देकर कहती है निशान इस तरफ जाते हैं, चलो जल्दी करो। उधर से सोफिया भी गुलामों को लेकर आगे बढ़ रही है। इसी लम्हे उसका सामना शहजादी विक्टोरिया से होता है और शहजादी विक्टोरिया उनसे पूछती है क्या आप अस्कलान जा रही हैं। तो सोफिया पूछती है तुम कौन हो। ये कहते साथ ही वो घोड़े से उतरकर उसके पास आती है। तो विक्टोरिया कहती है मैं शहजादी विक्टोरिया हूँ, किसी को ये पता ना चले। तो सोफिया पूछती है आप शहजादी विक्टोरिया हैं, इसका क्या सबूत है। जवाब में विक्टोरिया उसे अपना मखसूस हार दिखाती है। सोफिया कहती है सलाहुद्दीन ने आपको कैद कर लिया था, क्या वो अब भी आपके पीछे है। तो विक्टोरिया पूछती है तुमने क्यों पूछा, क्या तुम उसे खबर दोगी। तो सोफिया कहती है नहीं, वो हम सब का दुश्मन है, मेरी सल्तनत से वफादारी बादशाह बाल्दन अच्छी तरह से जानते हैं। ये सुनकर विक्टोरिया कहती है ठीक है, इसी तरह से वफादार रहे। अब मैं गुलामों की तरह काफिले में शामिल होकर तुम्हारे साथ अस्कलान जाऊंगी। अगर तुम अपना मुंह उस वक्त तक बंद नहीं रखते जब तक कि हम अस्कलान नहीं पहुंच जाते तो अपने अंजाम को भी याद रखना। इस पर सोफिया कहती है आप अपना चेहरा ढांप कर इनमें शामिल हो जाएं, किसी को मालूम नहीं होगा। ये सुनते साथ ही सोफिया एक गुलाम से चौगा लेकर पहन लेती है और फिर कहती है अब हम आगे बढ़ सकते हैं। उधर उस्ताद आजम मुसलसल भाग रहा होता है कि इसी लम्हे तुरान शाह उसे दबोच लेता है और दूसरी तरफ नसरुद्दीन और रेहानी गद्दार सिपाहियों के साथ महल के बाहर पहुंचते हैं। उन्हें देखकर सिपाही तलवारें बेनियाम कर लेते हैं और एक सिपाही कहता है मलिक सलाहुद्दीन का हुक्म है कि आप महल में दाखिल नहीं हो सकते। जवाबन नसरुद्दीन कहता है ये महल और तख्त अब मेरा है। फिर नसरुद्दीन के साथ मौजूद कमांडर कहता है इन सबको पकड़ लो। उसके ये कहते साथ ही वहाँ पे लड़ाई छिड़ जाती है और जल्दी महल के तमाम सिपाहियों को दबोच लिया जाता है। फिर रेहानी के इशारे पर सिपाही महल का दरवाजा खोल देते हैं और नसरुद्दीन सिपाहियों के साथ महल में दाखिल हो जाता है। जिधर वजीर सिपाहियों के साथ उनका रास्ता रोक लेता है और सिपाहियों से कहता है पकड़ लो इन सबको। मगर कुछ देर की मज़ाहमत के बाद ही वजीर और उसके सिपाही भी कैदी बना लिए जाते हैं और नसरुद्दीन तलवार बेनियाम करते हुए कहता है अब से ये रियासत और ये महल मेरे मातहत है, जो मज़ाहमत करने की कोशिश करेगा मैं उसे अपनी तलवार से मार दूंगा, बेशक वो सलाहुद्दीन ही क्यों ना हो। इन सबको जिंदान में डाल दो। ये सुनते साथ ही सिपाही वजीर समेत सबको वहाँ से ले जाते हैं। उधर उस्ताद आजम तुरान शाह से कहता है मैंने कहा कि मुझे नहीं मालूम कि हमें किसने छुड़वाया। जवाबन तुरान शाह कहता है तुम झूठ बोल रहे हो, बताओ वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। इसलिए मैं एक तीर आकर उसके सीने में पेवस्त हो जाता है। तीर लगते साथ ही तुरान शाह बिल्कुल निढाल होकर जमीन पर गिर जाता है। ये तीर मारने वाला गैब्रियल होता है जो अपने सिपाहियों के साथ वहाँ पहुंचता है। फिर दूसरी तरफ से सलाहुद्दीन यूबी को आता हुआ देखकर गैब्रियल कहता है उस्ताद आजम इस तरफ चलें, हमें जल्दी जाना होगा। ये कहते साथ ही वो उस्ताद आजम के साथ आगे भाग जाता है जबकि सलाहुद्दीन यूबी भागे भागे तुरान शाह के पास आते हैं और जोर जोर से उसे बुलाते हैं। एक तरफ से शेर को भी सिपाहियों के साथ वहाँ पहुंचता है और तुरान शाह को जमीन पर पड़ा हुआ देखकर मेरे भतीजे कहता हुआ उसकी जानिब दौड़ पड़ता है। उन दोनों को जज्बाती होता हुआ देखकर पारस कहता है मलिक हजरत वो भाग रहे हैं। ये सुनते ही सलाहुद्दीन यूबी शेर को से कहते हैं आप यही रहे। ये कहते साथ ही वो खुद गैब्रियल के पीछे निकल पड़ते हैं जबकि शेर को तुरान शाह को झंझोड़ते हुए कहता है मेरे भतीजे आंखें खोलो, हमें एक और तकलीफ से मत गुजारो, मेरे भतीजे आंखें खोलो, खुदा के लिए आंखें खोलो। सिपाही जल्दी करो इसे तबीब के पास लेकर जाते हैं। इसके साथ ही वो उसे उठाकर वहाँ से ले जाते हैं। नाज़रीन इसके बाद हम देखते हैं सुरैया खातून सोफिया का रास्ता रोक लेती हैं जबकि विक्टोरिया सर बिल्कुल झुकाई खड़ी रहती है। दूसरी तरफ गैब्रियल भागते हुए उस्ताद आजम से पूछता है उस्ताद आजम विक्टोरिया कहाँ है। तो उस्ताद आजम कहता है वो दूसरी तरफ भागी है। भागते भागते उनका एक साथी तीर का निशाना बन जाता है। ये देखकर वो सब रुक जाते हैं और तीर मारने वाले सलाहुद्दीन यूबी कहते हैं तुम मुझसे भाग नहीं सकते गैब्रियल। फिर उन्हें अपनी जानी बातों हुआ देखकर गैब्रियल उस्ताद आजम से कहता है उस्ताद आजम हमें जाना होगा। ये कहते साथ ही वो सब भाग पड़ते हैं और सलाहुद्दीन यूबी अपने साथियों के साथ उनके पीछे जाते हैं। उधर सोफिया गुस्से में सुरैया खातून से पूछती है तुम क्या चाहती हो। इस पर सुरैया खातून घोड़े से उतरकर आगे बढ़ती हैं और कहती हैं शहजादी विक्टोरिया मैंने उसे तुम्हारे दरमियान देखा है। इसके साथ ही दोनों तरफ के सिपाही तलवारें बेनियाम कर लेते हैं। उधर सलाहुद्दीन यूबी और गैब्रियल एक बार फिर भागते भागते आमने सामने आ जाते हैं और सलाहुद्दीन यूबी कहते हैं अब तुम मेरी गिरफ्त में हो गैब्रियल। उन्हें देखकर उस्ताद आजम गैब्रियल से कहता है तुम जाओ और जाकर विक्टोरिया को बचाओ, मैं इसे संभालता हूँ। गैब्रियल के मना करने पर उस्ताद आजम एक बार फिर कहता है मैंने कहा जाओ, मैं तुम्हें यहाँ से जाने का हुक्म देता हूँ। यह सुनते साथ ही गैब्रियल वहाँ से भाग पड़ता है और उस्ताद आजम सिपाहियों के साथ उन पर हमलावर होता है। सलाहुद्दीन यूबी उस्ताद आजम और उनके साथियों पर वक्त जाया करने के बजाय गैब्रियल के पीछे भाग पड़ते हैं जबकि उनके साथी मुसलसल सुलेबियों को काट रहे होते हैं। जख्मी होने के बावजूद उस्ताद आजम भरपूर मजामत करता है और काफी देर तक मुकाबला करता रहता है। सिपाही अहमद दो कुल्हाड़ों के साथ सुलेबी सिपाहियों को चीर डालता है और लड़ते लड़ते उस्ताद आजम थक हार कर बैठ जाता है। ये देखकर पारस उसे काबू कर लेता है और कितने ही घंटों की उसकी सारी भाग दौड़ बिल्कुल बेकार जाती है। नाज़रीन इसके बाद हम देखते हैं नसरुद्दीन अपनी ही मौजू में दीवान में दाखिल होता है मगर दीवान में दाखिल होते साथ ही उसके कदम वहीं के वहीं रुक जाते हैं क्योंकि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी तख्त के सामने अपने कदमों पर खड़े होते हैं। फिर सुल्तान शदीद गुस्से में नसरुद्दीन को देखते हुए उसकी जानिब बढ़ते हैं और उसके करीब पहुंचकर कहते हैं गद्दार। यह सुनकर नसरुद्दीन के चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं। उधर गैब्रियल भागते भागते एक ऊंची चट्टान के कोने पर जा पहुंचता है। आगे कोई रास्ता नहीं होता और एक बहुत बड़ी खाई बनी होती है। गैब्रियल कभी एक तरफ भागता है और कभी दूसरी तरफ। आखिरकार सलाहुद्दीन यूबी उसके सामने आ पहुंचते हैं और तलवार का रुख उसकी जानिब करते हुए कहते हैं तुम्हारे पास भागने के लिए अब कोई जगह नहीं गैब्रियल। जवाबन गैब्रियल तलवार बेनियाम करते हुए कहता है तो ये वक्त हमारे दरमियान हिसाब किताब बराबर करने का है सलाहुद्दीन। ये सुनकर सलाहुद्दीन यूबी कहते हैं मैं यहाँ तुम्हें मारने के लिए नहीं आया बल्कि मैं तुम्हें उस औरत से मिलवाने आया हूँ जिससे तुम प्यार करते हो। तुम अस्कलान को हमारे हवाले कर दो और उस गद्दार का नाम भी बता दो जो इस सब में तुम्हारे साथ शामिल था। बदले में मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। सलाहुद्दीन यूबी की पेशकश सुनकर गैब्रियल हंसने लग जाता है और कहता है लगता है कि तुम अपने दुश्मन को अच्छे से नहीं जानते। मैं तुम्हें वो कभी नहीं दूंगा जो तुम चाहते हो, लेकिन मैं वो जरूर हासिल करूंगा जो मैं चाहता हूँ। सबसे पहले मैं तुम्हारी जान लूंगा। ये कहते साथ ही वो जंगी टोपी पहन लेता है और अगले लम्हे सलाहुद्दीन यूबी पर हमलावर होता है। दोनों के दरमियान एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे पर पे दर पे कई हमले करते हैं। सलाहुद्दीन यूबी की तलवार कई बार उसके सर पर जा टकराती है मगर उसे कुछ नहीं होता। तो सलाहुद्दीन यूबी कहते हैं तुमने मरने की बहुत कोशिश की लेकिन जो मैं चाहता हूँ उसे हासिल किए बगैर मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। ये सुनकर गैब्रियल टोपी उतार फेंकता है और कहता है मेरी आंखों में देखो, ये मेरे बाबा की मौत और उस
उस औरत का जिससे मैं प्यार करता हूँ उन दोनों का इंतकाम है। ये तुम्हारा इख्तिताम है सलाहुद्दीन। इसके साथ ही एक बार फिर उनके दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है और जोर आजमाई के दौरान सलाहुद्दीन यूबी का रुख खाई की तरफ हो जाता है। वो बिल्कुल चट्टान के दाने पर जा पहुंचते हैं। कई बार उनका पाँव फिसलता है मगर वो फिर से एकदम आगे होते हैं। जोर आजमाई कितनी देर तक चलती है और सलाहुद्दीन यूबी कई बार बचते हैं मगर काफी देर के बाद पलटते हैं, तलवार से वार करते हैं और गैब्रियल को एक जोरदार लात रसीद कर देते हैं और गैब्रियल उस गहरी खाई की तरफ गिर जाता है। गैब्रियल का जिस्म अभी हवा में ही होता है कि एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है।